तो हमें आज यही लैकुना आइडेंटिफाई करना है कि प्री क्वालिफाई क्यों नहीं होता है और उसको कैसे क्वालिफाई करना है, पढ़ना कैसे है। मैडम इस पे ज्यादा फोकस रहेगा आज की डिस्कशन में। एक कंटेंट टेररिज्म चल रहा है मार्केट में, आप सबको डराया जा रहा है कि ये बुकलेट नहीं पढ़ोगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। अक्सर आपने सुना होगा कि मैडम कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो क्या पढ़े। पेज भरना बहुत ही आसान काम है, काम की बात करना बहुत ही मुश्किल है। डिनर में क्या है, अगर आप ये स्टार्ट करोगे टेबल अच्छा है, चेयर अच्छी है, प्लेट्स भी अच्छी हैं, डिस्पोजेबल प्लेट भी है, सिरेमिक प्लेट भी है, पेज एक खत्म हो गया मैडम। डिनर के बाद आप हैंड वॉश भी कर सकते हो। ये तरीके के हमारे पास सोप अवेलेबल है, टिश्यू पेपर भी अवेलेबल है, पहले पार्किंग भी है, आपको बाहर छोड़ दिया जाएगा। ये हमने 2 पेज में लिख दिया, क्वेश्चन इतना ही है, डिनर में क्या है वो तो अभी तक पता नहीं चला। एग्जामिनर 2 पेज पढ़ेगा, दिल से वो चाहता है -5 नंबर दे आपको, बट वो दे नहीं सकता। काम की बात करनी है, हम आंसर लिख रहे हैं, कभी भी दी बेस्ट आंसर नहीं आएगा। परफेक्शन मैडम जिंदगी में कभी नहीं आएगी। यूपीएससी इज नॉट गेम ऑफ परफेक्शन, यू हैव टू बी स्लाइटली बेटर देन अदर्स। કન્ટેન્ટ હોવા છતાં પેન ઉપડતી નથી। ઘણીવાર દિમાગમાં ઘણી બધી વસ્તુ છે, એક લિમિટેડ પેજ છે આપણી પાસે, પણ આપણે લખી નથી શકતા। ક્વેશ્ચન જોઈને તમે ગભરાઈ ગયા કે હવે નથી જ આવડતું, આમાં શું જ લખીશ। દેન ધીસ વિલ હેલ્પ યુ। આવડે છે તો પણ તમારી પ્રસ્તાવના ફટાફટ લખાઈ જાય। કન્ટેન્ટ વિલ બી ડિફરન્ટ ફ્રોમ ક્વેશ્ચન ટુ ક્વેશ્ચન। તૈયારી કરતા હોય એટલે આપણને થાય કે હિસ્ટ્રી કેમ ભણવાનું હશે, જ્યોગ્રાફીને મારે શું લેવા દેવા, હવે ભૂગોળમાં અંદર કેટલી ઊંડાઈ છે ધરતીને, ક્યાં કોણ રહે છે, મારે શું લેવા દેવા જ છે। આજે જ તૈયારી ચાલુ કરીને આજે જ આન્સર રાઇટિંગ દેવું નહીં, 4-5 મહિના એવું આપો પોતાને કે એનસીઆરટી જીસીઆરટી કમ્પ્લીટ કરો। એટલે પહેલી વસ્તુ કે તમારા નોલેજ પ્રમાણે પ્રેક્ટિસ સ્ટાર્ટ કરો। જેમ જેમ તમારું નોલેજ એનરીચ થતું જાય છે એવી રીતે તમારા ક્વેશ્ચન્સનું લેવલ અપ કરો। આ વખતે આપણે સેમિનારનું ઓનલાઈન માધ્યમ બી રાખ્યું છે કે જે લોકો જોડાઈ શક્યા નથી અથવા જે લોકો 1.5ની સ્પીડમાં જોવા માંગે છે, ખાસ કરીને એવા જ, એટલે એ લોકો આપણે યુપીએસસી જીપીએસસીનો છે એટલે વધારે ઓછા સ્ટુડન્ટ્સ પાર્ટિસિપેટ થયા છે। બાકી ક્લાસ 3 હોત તો આપણે આખું અહીંયા વધારે જગ્યા કરવી પડત। જીપી દુપ્પડ સર છે જે દિલ્હીમાં, પહેલાં હું આમનો પરિચય આપી દઉં શોર્ટમાં। એ લગભગ 10થી વધારે એકેડમી સાથે કામ કરી ચૂક્યા છે। ઓનલી આઈએસ જે સુનિત રેવરી સરનું છે ત્યાં બી મેન્ટર તરીકે કામ કરે છે। પછી ફોરમ આઈએસ, પછી આઈએસ બાબા, પછી સ્ટડી આઈક્યુ, એ બધી જ જગ્યાએ સરે કામ ત્યાં કરેલું છે। એમણે ખુદ 5 વખત યુપીએસસીની મેઇન્સ આપેલી છે। એ ખુદ અત્યારે પંજાબમાંથી આવે છે, તો જે પંજાબની જે સ્ટેટ પીસીએસ છે એમાં 2 વખત ઇન્ટરવ્યૂ આપેલું છે। એટલે યુપીએસસીના ફિલ્ડમાં આમને બહુ બધો એક બહોળો અનુભવ છે। જ્યારે દ્રષ્ટિ શાહ મેડમ છે જેઓ 2019ની બેચના જીપીએસસીમાં રેન્ક 41માં સેક્શન ઓફિસર તરીકે સિલેક્ટ થયા હતા અને અત્યારે સોશિયલ જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેક્શન ઓફિસર તરીકે ફરજ બતાવી રહ્યા છે। આવીએ સર। તો યુપીએસસીના ફિલ્ડમાં જેને પણ જેટલો બી ક્વેશ્ચન હોય, કંઈ પણ ધારો કે તમારી જેટલી પણ ક્વેરીઝ હશે એ સર ક્વેરીઝ બી સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે। અને ખાસ કરીને જીપીએસસી મેઇન્સમાં આ સર લગભગ મેઇન્સમાં જીપીએસસી અને યુપીએસસી બંને કવર કરશે, પણ જીપીએસસી સૌથી વધારે મેડમ સૌથી વધારે કવર કરશે। તો વધારે ટાઈમ ન લેતા આપણે સીધા સર જોડે જ જઈશું અને કોઈને પણ કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય નિસંકોચ પૂછી શકે છે। જો કોઈને ધારો કે ડીવાયએસઓ ધારો કે નાની એક્ઝામમાં રસ છે તો એના માટે કદાચ જો સમય મળશે તો મેડમ બી આવશે કે નાની એક્ઝામ ધારો કે જીપીએસસીની છે, ધારો એસટીઆઈ છે, ડીવાયએસઓ છે, એને કેવી રીતે કરી શકાય। પણ જે ટોપ લેવલની એક્ઝામ છે એના માટે બહુ ઘણી વિગતવાર વાત આપણે પંકજ સર કરશે। ગુડ ઇવનિંગ ટુ ઓલ ઓફ યુ, એમ આઈ ઓડિબલ? યસ સર। ઓકે, તો ફર્સ્ટ થિંગ, predominantly I presume all of you are preparing for UPSC. Yes. And if those who are not preparing, day after tomorrow or after that, one day you are going to consider UPSC as your dream destination. Okay, तो one by one start करेंगे सर, slowly and steadily. Today our agenda is to discuss both pre and mains and avoid करेंगे उन चीज़ों को जिसकी वजह से हमारी सिलेक्शन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। पढ़ते जा रहे हैं डेली 10-10 घंटे। मैडम आप कहीं पे जाओगे, किसी लाइब्रेरी में, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, आपको भीड़ मिलेगी, सिलेक्शन फिर नहीं हो रही है। उसका एक प्राइमरी पॉइंट ये है
कि पोस्ट बहुत कम होती है। 10 लाख स्टूडेंट्स आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और पोस्ट हमारे पास 1000 है, 1100 है, 800 है, लाइक दैट। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कंसिस्टेंटली हर साल प्री क्लियर करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं मेंस क्लियर करते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे सर आप 5 साल से तैयारी कर रहे हो, वो कल आएंगे मार्केट में 1 साल तैयारी करेंगे, टॉप 10 में रैंक आ जाएगा, स्टोरी खत्म हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, कभी प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो हमें आज यही लैकुना आइडेंटिफाई करना है कि प्री क्वालिफाई क्यों नहीं होता है और उसको कैसे क्वालिफाई करना है, पढ़ना कैसे है मैडम, इस पे ज़्यादा फोकस रहेगा आज की डिस्कशन में। कंटेंट की कोई कमी नहीं है मार्केट में, कंटेंट यूट्यूब पे आपको पूरा मिलता है, टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, और मैडम इतनी ज़्यादा साइट्स हैं कि अगर वो साइट्स का नाम याद रखो कि कंटेंट कहाँ पे मिलता है तो 10 साल में वही याद नहीं होंगी। कंटेंट तो बहुत दूर की बात है। एक कंटेंट टेररिज्म चल रहा है मार्केट में, आप सबको डराया जा रहा है कि ये बुकलेट नहीं पढ़ोगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। आप वर्स्ट ऑफ दी वर्स्ट मटेरियल ले लो मार्केट से, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, वो बेस्ट बन जाएगा। आप बेस्ट मटेरियल ले लो, बेस्ट क्या है सर, आप कल आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपका रैंक 1 आ जाएगा। आप बोल दोगे ये बुक मैंने पढ़ी थी वो बेस्ट बन जाएगी, मैडम आपके लिए बेस्ट नहीं है। बेस्ट तभी आपके लिए जब आप उसको पढ़ोगे। हमें कंटेंट टेररिज्म से बचना है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जीएस 3 पढ़ा है आपने, व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक इन जीएस 3 सिलेबस? वो पूरा सिलेबस है सर, उसमें टॉपिक आता है, फर्स्ट लाइन आती है एक, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करनी है, जीएस 3। इकोनॉमी आती है, साइंस एंड टेक आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज देयर। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का प्राइमरी मैडम कंसर्न इज कि आपके पास लिमिटेड टाइम है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, एग्ज़ाम से पहले उसको प्रिपेयर करने के लिए, और डिग्री से लेके अपनी सिलेक्शन तक टाइम बहुत ही कम है, रिसोर्सेज बहुत ही कम है। रिसोर्सेज में सबसे मेजर चीज़ है टाइम। मनी इज़ नॉट अ बिग रिसोर्स, क्योंकि जब कंटेंट ऑनलाइन फ्री में मिल रहा है कहीं पे भी पढ़ सकते हो सर। तो रिसोर्स इज टाइम। टुडे वी आर कंडक्टिंग दिस सेमिनार, यू ऑल आर हेयर, व्हाट यू आर डिवोटिंग योर टाइम। तो मैडम ये जो आपका जो नेक्स्ट 2 आवर्स है, आई विल ट्राई कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हो, और जब आप यहाँ से जाओ आपको कुछ प्रोडक्टिव मिले कि हम ये मिस कर रहे थे और ये चीज़ें हमें मिस नहीं करनी है। फाइन सर। नंबर 1, we all are here because we are having a desire. All of you are having one desire to become a civil servant. Am I right, madam? This is the only purpose you are here. I am also having desire to make you people a civil servant. We are here. Desire. How we are going to fulfill our desires? With our capability. सर या तो अपनी डिजायर भूल जाओ या अपनी कैपेबिलिटी एनहेंस कर लो, दोनों में से एक ही चीज़ चलेगी मैडम। ज़िंदगी में डिज़ायर कोई भी हो सकती है, अच्छा खाना खाने की डिज़ायर है तो मैडम अच्छी कुकिंग आनी चाहिए। अगर कहीं घूमने जाना है सर तो वहाँ जाने के फ्रांचाइज आपके पास होने चाहिए। कैपेबिलिटी के साथ ही डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलेंगी। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है मैडम तो ईच एंड एवरी डिज़ायर यू कैन फुलफिल, और अगर आपके पास सिर्फ डिज़ायर्स हैं, कैपेबिलिटी नहीं है, तो you have to work on your capability enhancement. We all are here to enhance our capabilities to fulfill our desire. Desire is to become a civil servant. अब इसमें GPSC भी है, UPSC भी है और any other exam. How we are going to enhance our capabilities? Madam, for that matter, there are different coaching institutions, different libraries, different books, A, B, C, D, बहुत सारी चीज़ें हैं। Capability enhancement में सर आपको करना क्या है? आपको एक दोस्त बना लेना है। फॉर योर कैपेबिलिटी एनहांसमेंट आपको एक दोस्त बना लेना है, दोस्त का नाम रख देना है केशव। एग्जाम में बार बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैडम कौन कौन करता है आप में से? आप करते हैं मैडम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? एनीवन? यू आर राइटिंग आंसर्स? हाँ जी, नो, यस नो? नो, एनीवन राइटिंग आंसर्स? हाँ जी सर। हाँ जी, एक पॉइंट लिखते हो कैपेसिटी बिल्डिंग, हर पॉइंट में लिखते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों काम नहीं कर रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। व्हाट इज कैपेसिटी बिल्डिंग?
उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, केशव बढ़ा देना सर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है सर, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। आप सब लोग यहाँ बैठे हो किस लिए? अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। आप सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग अभी कर देंगे। कैसे? आपको चाहिए नॉलेज, आपको चाहिए एजुकेशन, आपको चाहिए स्किल्स, आपको चाहिए प्रॉपर एप्टीट्यूड, देन आपको चाहिए वैल्यूज़। ये सब चीज़ें आपके पास आ गई तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी। और कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में मैडम, आपको एक अच्छा दोस्त बना लेना है। कौन? केशव। जब तक आपके साथ केशव है आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर हार जाओगे सर तो एक चीज़ है एटीट्यूड। एटीट्यूड आपको जिताता रहेगा। उसमें हेल्प कौन करेगा? आपकी नॉलेज, एजुकेशन, वैल्यूज़। जब तक वैल्यूज़ है मैडम हम गलत काम नहीं करेंगे। जब तक आप गलत काम नहीं करोगे ऑटोमेटिकली बाय दिस और दैट वे यू विल बी ऑन दी हायर पेडेस्टल। हारना इम्पॉसिबल टास्क है। अगर हमने एक दोस्त बना लिया केशव, फाइन सर। नॉलेज, एजुकेशन, स्किल्स, वैल्यू और एक एटीट्यूड आपको मैडम अपना एनहेंस करना है। टू फुलफिल योर डिजायर्स यू नीड टू एनहेंस योर कैपेबिलिटी। योर कैपेबिलिटी विल बी एनहेंस्ड विद द हेल्प ऑफ केशव। हर पॉइंट में आंसर लिखते हो कि देश में ये एजुकेशन क्यों नहीं अच्छी चल रही है? डॉक्टर पीपल रेशो का इशू है, टीचर पीपल रेशो का इशू है, स्टूडेंट ज़्यादा हैं टीचर कम है। और हेल्थ डिपार्टमेंट क्यों नहीं चल रहा है? डॉक्टर पीपल रेशो का इशू है, डॉक्टर्स कम है और पेशेंट ज़्यादा है। कोर्ट अच्छे से काम क्यों नहीं कर रही है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा, पेंडेंसी ज़्यादा है, वैकेंसी ज़्यादा है। मैडम क्या करना है? कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट करनी है मैडम सुप्रीम कोर्ट की। कैसे एनहेंस करोगे? यही चीज़ें आपको देनी है। जजेस के पास मस्ट बी हैविंग दिस वैल्यू कि सर वी नीड टू अवॉइड दिस पेंडेंसी ऑफ द केसेस। वैल्यू सिस्टम हमारा कहीं ना कहीं लैप्स है, ऑर्गेनाइजेशन क्लैप्स कर जाएगी। नॉलेज नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन क्लैप्स कर जाएगी। सर एक होता है नॉलेज फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। जब आपने अगर एथिक्स पढ़ा होगा, एथिक्स में एक टॉपिक आएगा एटीट्यूड। एटीट्यूड में आएगा नॉलेज फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। अगर आपके पास सर नॉलेज है तो ही आप काम कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस मैडम शेक हो जाएगा। हमने बहुत सारी VRS देखी, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, गोल्डन हैंडशेक स्कीम में 2000 के बाद मैडम बहुत सारे लोगों ने रिटायरमेंट्स ली। रीजन बीइंग दे वर नॉट रेडी टू ऑप्ट द डिजिटाइजेशन। आप सर IAS हो, आपको मेल करनी नहीं आ रही है, क्यों? आप अपनी नॉलेज को बदलना नहीं चाहते, आप अपने स्किल्स को एनहेंस नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में एक बार केशव से शादी हो गई तो सारी ज़िंदगी वही केशव रहेगा। वो केशव ग्रो होता रहेगा, चेंज उसको करना ही पड़ेगा। परमानेंटली सेम केशव के साथ नहीं रह सकते। अगर मैडम आपको कोई बोले कि अब आप बदल गए हो तो यू शुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बदलना ज़रूरी है। अगर आप नहीं बदलोगे तो समय से पीछे रह जाओगे। बॉडी ग्रो हो रही है, नज़र कमज़ोर हो रही है पढ़ते पढ़ते, तो ये पॉजिटिव चेंज है, होनी चाहिए, कोई बात नहीं। हर चीज़ बदलेगी कभी ना कभी। देखना ये है सर कि वो जो चेंज आ रही है लाइफ में वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो कितनी प्रोडक्टिव है हमारे लिए। हमें कौन सी नॉलेज चाहिए और कौन सी नॉलेज नहीं चाहिए, उस पर मैडम नेक्स्ट पॉइंट आता है केशव में के। सपोज सर आपको यहाँ से जाना है दिल्ली, गुजरात टू दिल्ली, प्रिसाइजली अहमदाबाद टू दिल्ली। एग्ज़ाम में सिलेबस मिल गया आपको, यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम अहमदाबाद ब्रैकेट में गुजरात लिखा है टू दिल्ली। अब मैडम कुछ लोग क्या करते हैं, जो मार्केट में आपको मिलेगा, आफ्टर दिस क्लास यू हैव टू रीड एवरी डॉक्यूमेंट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। इसकी ज़रूरत क्या थी लिखने की, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? कंटेंट टेररिज्म चल रहा है, मेरा कंटेंट ज़्यादा अच्छा है, ये हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन बोलेगा। आपको ये डिसाइड करना है सर कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अच्छा और बुरा डिसाइड करने के लिए मैडम सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। अहमदाबाद से दिल्ली जाना है, अहमदाबाद के साथ ब्रैकेट में लिखा है गुजरात। लोग मैडम भावनगर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो रास्ते में आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें सिलेबस ही नहीं पता है। जितने भी लोग यहाँ UPSC की प्रेपरेशन कर रहे हैं, सर आपके पास एक ही टास्क है, राइट सिलेबस ऑफ GS2। कैन यू राइट इन डिटेल पूरा सिलेबस, वर्ड बाय वर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट। जब तक सिलेबस ही नहीं पता है प्रेपरेशन हो ही नहीं सकती। आपको गुजरात से अहमदाबाद से दिल्ली जाना है सर, रास्ता पता नहीं है, रैंडमली जो मिलता है, अच्छा जयपुर है आता होगा, आंसर लिख देते हैं जयपुर पे। ये रेस्टोरेंट आता होगा, आंसर लिख देते हैं। फर्स्ट प्राइमरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए मैडम एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, सिलेबस। चाहे वो GPSC है, UPSC है, ABCD कोई भी एग्ज़ाम है, जब तक सिलेबस नहीं पता है सर
आप सब लोग हवा में तीर चला रहे, लग जाए, वो आमिर खान ही बोल सकता है ऑल इज वेल, वो लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो आप पूरी ज़िंदगी बोलोगे किस्मत हमारे फेवर में नहीं थी। अब आपको सिलेबस आता नहीं है तो किस्मत क्या करेगी, के से किस्मत है और के से नॉलेज है, नॉलेज आएगी तो किस्मत अपने आप आपके फेवर में आ जाएगी। फाइन, सबसे प्राइमरी चीज़ मैडम नोट कर लो, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सिलेबस। प्री का सिलेबस सर बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, मेंस का सिलेबस मैडम आपको प्रिसाइज सिलेबस मिलेगा वर्ड बाय वर्ड, एक्सेप्ट ऐसे, ऐसे को छोड़ के यूपीएससी की बात कर रहा हूँ सर। फाइन, प्री का सिलेबस आपको रैंडम मिलेगा और ऐसा बोला जाता है हर कोचिंग इंडस्ट्री में एवरीथिंग अंडर सन इज पार्ट ऑफ यूपीएससी सिलेबस। कहानी ऐसी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट वही मैडम 5 मिनट बाद उस पर आते हैं कि कहानी ऐसी क्यों नहीं है और हमें क्या करना है। बट सर अभी तक की डिस्कशन में एक आपके पास डिज़ायर है, हर इंसान चाहता है आपकी डिज़ायर फुलफिल हो, आपको अपनी कैपेबिलिटी एनहांसमेंट करनी है। कैपेबिलिटी एनहांसमेंट के लिए आपको केशव की ज़रूरत पड़ेगी। केशव में सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए सर वो है नॉलेज ऑफ द सिलेबस। ओके, नॉलेज ऑफ द सिलेबस। बाकी मैडम ई पे आते हैं जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स। सर प्री में अक्सर आपने सुना होगा कि मैडम कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो क्या पढ़ें। सबसे बड़ा डायलेमा यही है, जीपीएससी ले लो यूपीएससी ले लो, क्योंकि मैडम बुक्स इतनी ज़्यादा हैं, वही आपको बताया कंटेंट इतना ज़्यादा है। सर आपको पॉलिटी की इतनी ज़्यादा बुक्स मिलेंगी टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट कि अगर आपको ये टास्क दिया जाए कि कितने टाइप्स की पॉलिटी की बुक्स हैं वही याद कर लो, 5 साल में वही याद नहीं होगा। बुक के अंदर क्या लिखा है वो तो दूर की बात है। कोई भी बुक पकड़ लो, लक्ष्मीकांत पकड़ लो, ABCD किसी भी इंस्टीट्यूशन की पॉलिटी इकोनॉमी की बुक पकड़ लो, बार बार पढ़ो, बार बार की सर एंडलेस है, कोई लिमिट नहीं है। 10th टाइम पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड समथिंग न्यू, 11 टाइम पढ़ोगे तो कुछ और पता चलेगा, 12 टाइम पढ़ोगे तो कुछ और पता चलेगा। ऑथेंटिक सोर्स क्या है यूपीएससी के लिए? कंटेंट कहाँ से आता है मैडम? यूपीएससी में कोई भी कॉपीराइट का फंडा नहीं है। क्यों? पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी पेस्टेड है। सोर्स क्या है? एनसीईआरटी, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, बजट आ गया, पीआईबी की रिपोर्ट्स आती हैं, कोई मिनिस्ट्री ने कोई रिपोर्ट दे दी, कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दे दी, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट दे दी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट दे दी। वहाँ से कंटेंट बना के आपकी ज़रूरत के लिए कितना चाहिए, जिस इंसान के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो आपको वो कंटेंट दे देगा। सर योर टास्क इज यू हैव टू रीड ABCD रिपोर्ट ऑफ IMF, उसकी समरी पढ़नी है। IMF से पढ़ोगे तो इतना बंडल मिलेगा, किसी कोचिंग वाले ने दे दी तो इतना मिलेगा। अब किसी ना किसी कोचिंग में एक आधा पॉइंट ज़्यादा कम हो गई, सब आप याद नहीं रख सकते। अगर सब याद रखने बैठेंगे मैडम तो प्री क्वालिफाई नहीं होगा, नॉलेज बढ़ती जाएगी। इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बड़ी बात है मैडम, ध्यान से याद रखना, नॉलेज बढ़ती जाएगी, डर बढ़ता जाएगा। 5th अटेम्प्ट है, हाथ कांपेंगे जब गोला लगाओगे पेपर में कि इस बार भी ना हुआ तो क्या होगा। 1st अटेम्प्ट वाला फुल कॉन्फिडेंस में आता है, अरे कोई बात नहीं नेक्स्ट भी तो है। हमेशा जो भी अटेम्प्ट आप देने वाले हो दैट शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट। हमेशा इसी माइंडसेट के साथ जाना है कि यही लास्ट है, इस बार हो ही जानी है सिलेक्शन। इतनी पॉजिटिविटी चाहिए, एवरी अटेम्प्ट इज योर लास्ट अटेम्प्ट सो दैट यू कैन गिव योर बेस्ट। 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैडम यूपीएससी प्रीलिम्स में। 1, वेयर बाय अ लेमैन, अ कॉमन स्टूडेंट जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा होता, अच्छे से डिग्री करी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, कुछ भी आपने करा है, कोई भी यूपीएससी का पेपर उठा के देखो मैडम, आपकी ग्रेजुएशन और आपकी नॉलेज से रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। वो मेरे को ऐसा लगता है कि यूपीएससी वाले कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर फिर आना,
इसलिए आपको एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि ये ले 4 क्वेश्चन तुम्हें भी आते हैं, बिना पढ़े आए तो भी मिल गए। फाइन। बेसिक आप अगर पढ़ के जाओगे एनसीईआरटी तो यू विल बी एबल टू गेट मल्टीपल क्वेश्चंस जिनके आंसर काफ़ी इजी है। मैडम ये स्टूडेंट लिखा है, यहाँ पे कोचिंग लिखा है, ये गूगल लिखा है और गॉड लिखा है, यहाँ पे यूपीएससी लिखा है। एक वो टाइप है मैडम जिसका आंसर स्टूडेंट भी अटेम्प्ट करता है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी अटेम्प्ट करता है, सबको आता है। ये आंसर मैडम नंबर 1 स्टूडेंट को भी आता है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी उसका डायरेक्टली आंसर देता है, गूगल करोगे आराम से मिल जाएगा। भगवान को भी उसका आंसर पता है, यूपीएससी को भी पता है। नेक्स्ट क्वालिटी आती है सर, यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे 25 क्वेश्चन। कभी भी पेपर लेके आ जाना, 1 on 1, किसी को कोई डाउट हो वी कैन डिस्कस प्रीलिम्स। Anyone who is preparing sincerely for the past 1 year, they can easily get 25 to 30 questions, और इससे ज़्यादा आएंगे भी नहीं। यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। उसके बाद wherever you are going to take help of any mentor, any coaching institution, ABCD, they are going to help you to get 20 more questions। 20-25 की गेम और चलती है, 25-30 ये नंबर 2 कैटेगरी है। ये दोनों कर लोगे 50+ क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, प्री क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद कुछ लोग जो ज़्यादा मार्क्स ले रहे हैं, कुछ लक फेवर कर जाता है, कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी होती है मैडम। 2016 में आई वॉज हेयर इन गुजरात गांधीनगर, तो सर मैंने एक डॉक्यूमेंट पढ़ के गया जिसमें कुछ 8-10 पेज थे, उसमें लिखी थी सिर्फ रिपोर्ट्स। अभी मैडम पिछले 2-3 साल से रिपोर्ट पे क्वेश्चन ही आ रहा है कि दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। उस टाइम पे मैं कुछ 10 पेज पढ़ के गया, एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़े थे, और 4 क्वेश्चन आ गए उसमें से। और पूरी हिस्ट्री में से जितना मैंने पढ़ा था मैडम पिछले 2 साल में से, उसमें जितने क्वेश्चन आए मुझे 4 नहीं आते थे। तो कभी कभी लक आपका फेवर में आएगा। फाइन। ये वो वाला पार्ट है सर जो 5-10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे देता है। टोटल यू विल बी गेटिंग 130, 100 की रेंज क्रॉस हो जाएगी। फाइन। और एक वो क्वेश्चन है मैडम लास्ट कैटेगरी जिसका आंसर गूगल को भी नहीं पता, भगवान को भी नहीं पता, सिर्फ यूपीएससी को पता है। 10-12 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, उनका आंसर सिर्फ यूपीएससी को पता है, भगवान को भी नहीं पता। अब गूगल करोगे नहीं पता चलेगा आंसर। और हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन मैडम वहाँ पे 1 साल तक डिबेट चलेगी। आप पुराना पेपर उठा के देख लो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, 10-12 क्वेश्चन गलत ही होंगे। जो यूपीएससी कह रही है वो सही है मैडम, ऐसा नहीं कह रहे, बट यूपीएससी कह रही है वही सही है। आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। हमको तो जो दे दोगे सर सही है। ऐसा तो नहीं है कि आपको बोले कि आप आईआरएस बन रहे हो, आईएएस के लिए रैंक नहीं है तो बोलो मैं नहीं बनूंगा, बन जाओगे ना। बेगर्स कांट बी चूजर्स। आपको जो मिल रहा है मैडम पहले वो ले लेना है, फिर आगे बढ़ना है। 1 by 1 सबसे पहले जो नॉलेज एक स्टूडेंट गेन कर सकता है वो आपको गेन करनी है। नंबर 2, जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूशन कोई मेंटर किसी ने आपको बताया, किसी सीनियर ने बताया, किसी टॉपर ने बताया कि हाँ भाई ये चीज़ सही है, वो आपको अपनी रैशनैलिटी से डिसाइड करनी है। हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए सही है वो आपके लिए सही ना हो। मेरे को हिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको हिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स आते हैं। हो सकता है मैडम आपके लिए एसए में ज़्यादा मार्क्स आए, GS2 में कम आए, मेरे लिए हो सकता है GS2 में ज़्यादा आए। यू हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। जिसमें ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, जिसमें कम मार्क्स आ रहे हैं उसमें मिडिल क्लास मीडियोकर मार्क्स वहाँ पे भी लेने हैं, उसको छोड़ नहीं देना। क्योंकि चेन की स्ट्रेंथ मैडम वहाँ से डिसाइड होगी, जो वीकेस्ट एंड होगा वहाँ से चेन टूट जाएगी। जहाँ पे चेन स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग रखना है, वीकेस्ट पॉइंट पे इतना काम करना है, वीकेस्ट पॉइंट टूटे ना। फाइन। नॉलेज पे आए थे हम, नॉलेज से आगे बढ़ रहे थे, नॉलेज के बाद आगे हम प्रीलिम्स पे। प्रीलिम्स में हमारे पास सर क्रक्स मैटर क्या है, सबसे पहले जो नॉलेज आप खुद गेन कर सकते हो उसमें आपको फुल कॉन्फिडेंट होना है। टिप्स पे होनी चाहिए कुछ चीज़ें। DPSP आर्टिकल कौन कौन से हैं? रात को कोई 2 बजे उठाए, क्या नाम है आपका? हाँ जी, यस। रात को 2 बजे कोई उठाए, DPSP में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन से हैं, लिबरल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, टिप्स पे होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी कौन से हैं, टिप्स पे होने चाहिए। गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, टिप्स पे होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे टिप्स पे नहीं है और मैडम हम बाद में बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो क्या हमें सिलेबस आता है? नो। पहले तो वो सीखना है जो एक स्टूडेंट सीख सकता है। उसमें आपको इतना ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग कर देनी है कि कुछ भी पूछ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें से 25-30% ही पेपर आएगा, और 25-30% में वी हैव टू स्कोर 80%। ह्यूमन एरर्स भी होंगे मैम, आपको कितना भी पढ़ के जाओ, प्री के 30 क्वेश्चन है मैडम, 1-2 क्वेश्चन गलत होना ही है, ह्यूमन एरर है। अगर नहीं कर पा रहे हो
तो फिर वो गॉड वाला फैक्टर आ जाता है। कोई भी इंसान गलती करेगा, कितनी भी अच्छी ड्राइविंग है आपकी, कार रोड पे चलाओगे थोड़े बहुत स्क्रैच आने ही हैं। अगर नहीं आ रहे तो फिर वो गॉड ग्रेस ही चल रहा है काम, क्योंकि वी आर इन इंडिया, यहाँ पे कोई पता नहीं है, कोई रूल नहीं है, कौन सी गाड़ी कहाँ से आएगी मैडम पता नहीं। ऐसा ही यूपीएससी के साथ है, तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है ना, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं है। मैं आपको बोलूँ सर हिस्ट्री पढ़ लो, हिस्ट्री से क्वेश्चन आए, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। आई एम सेइंग थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। 25-30 क्वेश्चन आ जाएंगे। टेक हेल्प ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, एनी मेंटर, वेयर बाय यू आर गोइंग टू एक्सपीडाइट दैट पोर्शन, यू कैन गेट 25 more questions. Rest, if you are going to do all those things, I am sure that you will get 10 more with God grace, if you are having that much faith. बाकी के 20 क्वेश्चन छोड़ दो, उसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है मैडम। कुछ भी पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर अगेन यू विल गेट 20 क्वेश्चंस जिनका कोई सोर्स नहीं है। सोर्स गूगल पे नहीं मिल रहा। पॉलिटी में 15 क्वेश्चन आते हैं सर, अप्रॉक्सीमेटली 18, 15, 12 ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे मैडम, ना डीडी बसु में मिलेंगे, ना लक्ष्मीकांत में मिलेंगे, ना ABCD किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में मिलेंगे, ना किसी रिपोर्ट में मिलेंगे, ना किसी कोर्ट की जजमेंट में मिलेंगे। लोग क्या करते हैं, ये 4 क्वेश्चन जिस बुक में होंगे हम वो बुक पढ़ेंगे, 1 साल लग जाएगा, वो बुक नहीं मिलेगी, और दोबारा फिर लक्ष्मीकांत। फाइन, लक्ष्मीकांत नहीं है, लक्ष्मीकांत है, वो कुछ नहीं करेगी जब तक आप उसको याद नहीं रखते। दिस इज अ फैक्ट, जब तक आप उसको याद नहीं रखते वो कुछ नहीं करेगी। लक्ष्मी ने जो लिख दिया, लक्ष्मी बाद में आएगी। सर ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत यूपीएससी के लिए बनाई गई है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए बनाई गई है। सब्जेक्ट हमारे पास है इंडियन पॉलिटी, अलग से सब्जेक्ट नहीं है पॉलिटी। वैसे सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस, सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। हम क्या पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स तो पढ़ते नहीं, किसी का अगर ऑप्शनल हो इकोनॉमिक्स या किसी ने पढ़ी हो ग्रेजुएशन में तो वो देखेगा यार ये है इकोनॉमिक, ये पढ़नी है इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए। इंडियन इकोनॉमी बहुत ही छोटी चीज़ है। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है मैडम बहुत ही वास्ट है। हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं बजट में जीडीपी क्या होता है, जीडीपी से ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। फाइन, पॉइंट क्या है सर, पढ़ना कितना है, कैसे पढ़ना है, ये मैडम आज की हमारी डिस्कशन का टॉपिक है। नॉलेज एनहेंसमेंट में जो चीज़ें आप खुद कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है, नंबर 2, जहाँ पे हेल्प नहीं मिल सकती छोड़ दो। जहाँ पे हेल्प नहीं मिल सकती छोड़ दो, जहाँ पे हेल्प मिल सकती है गेन कर लो, जो खुद से कर सकते हो गेन कर लो। इन 2 चीज़ों पे काम कर लोगे सर, प्री क्वालिफाई हो जाएगा। आई एम श्योर प्री क्वालिफाई हो जाएगा। फाइन, प्री दिया पहले, इस बार क्वालिफाई हो जाएगा, डोंट वरी। एक बार मैं बोलता हूँ सच हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं सर, प्रीलिम्स में एक और चीज है जिसने खौफ पैदा किया है, सी सेट। मैडम सी सेट में 3 चीजें आती हैं, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जो शब्द है सर, पूरे यूपीएससी में 2 जगह मिलेगा। कहाँ पे? कौन से पेपर में? पहले पेपर में भी वही, कहाँ लिखा है एप्टीट्यूड? वही लिखा हुआ है। बताओ ये नहीं। हाँ जी, एथिक्स में, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एक वर्ड वहाँ है मैडम, एक सी सेट में जो आपका ए आता है वो एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड पे सर 1 मिनट बात कर लेते हैं, एप्टीट्यूड आपकी हेल्प कैसे करता है। फिल्म्स को दोबारा कंटिन्यू करते हैं यहीं से। 3 चीजें हैं सर, जो हमारा केशव का वी है, दैट इज वैल्यू सिस्टम। केशव में वी दे दिया मैडम आपको वैल्यू, अभी बात कर रहे हैं वैल्यू के ऊपर। एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। प्यार करना सर ये गलत चीज़ नहीं है, आपको पता ही होगा सर। आपका नाम क्या है? मिथुल। प्यार करना गलत चीज़ तो नहीं है, बट आपकी एज है 25, आपने प्यार कर लिया, लड़की की एज है 70 ईयर्स, तो अभी गलत हो जाएगा। अब आप उसको बोल रहे हैं मुझसे अभी शादी कर, वो कह रही है मेरे पोते भी हैं, तो प्यार करना आपका गलत हो गया। मैडम एथिक्स आर नथिंग, एथिक्स आर द सोसाइटल स्टैंडर्ड्स व्हिच आर गोइंग टू डिसाइड राइटियसनेस और रॉन्गफुलनेस ऑफ एन एक्ट। कौन डिसाइड करेगा? सोसाइटी डिसाइड करेगी। वैसे प्यार करना सही है, करेक्ट है। प्यार ऐसा नहीं है कि किसी लड़की से कर सकते हो, प्यार बुक से भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आप कौन से प्रोफेशन में हो। आप अपनी जॉब से भी प्यार कर सकते हो, चेयर से भी कर सकते हो, भगवान बारी से भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है मैडम सिनेरियो क्या चल रहा है। फाइन, नंबर 1 एथिक्स। आपको सही हो गलत हो सोसाइटी डिसाइड करती है। इंटेग्रिटी क्या काम करती है सर? मैडम व्हेन यू आर गोइंग टू अपहोल्ड द सेम वैल्यू स्टैंडर्ड्स इन ऑल टाइम एंड स्पेस, इट मीन्स इंटेग्रिटी इज देयर। प्यार कर लिया सर आपने किसी से, क्या नाम है? गोपाल। तो गोपाल ने मैडम प्यार कर लिया किसी से, अच्छी बात है, प्यार करना चाहिए।
लड़की ने पूछ लिया सर मुझसे प्यार क्यों करते हो, फाइन, तो क्या जवाब दोगे? कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना। किसी को प्रपोज करोगे तो लड़की पूछेगी ना तुम्हारे जैसे तो रोज मेरे को इतने प्रपोजल्स आते हैं, तो तुम्हारे प्यार में क्या खास चीज है? तो इमीडिएटली मैडम गोपाल क्या आंसर देगा? हाँ जी, इंटीग्रिटी इज देयर। मेरे प्यार में इंटीग्रिटी है। आई विल लव यू विद सेम क्वांटम थ्रू आउट माई लाइफ। दुनिया में कुछ भी बदल जाए प्यार उतना ही रहेगा। एथिक्स भी है, अपनी एज की लड़की है, फाइन, ऐसा नहीं है कि किसी शादीशुदा से प्यार कर रहे हैं, फाइन। उसको प्रपोज करोगे शादी करने के लिए तो थोड़ा सा अनएथिकल हो जाएगा मैडम इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग। एक पर्टिकुलर सोसाइटी में ये अनएथिकल भी नहीं है भाई, एथिक्स आर सोसाइटल स्टैंडर्ड्स। सोसाइटी डिसाइड करेगी। बॉलीवुड के मैडम अलग स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे अलग स्टैंडर्ड्स हैं। एग्जाम्पल है मैडम LGBT, कहीं पे LGBT को एथिकल माना गया, कहीं पे अनएथिकल माना गया। एथिक्स आर ओवर एंड अबव लॉज। लॉ बोल रहा है मैडम LGBT एक टाइम पे इलीगल एक्ट है, अब इलीगल है बिकॉज एथिक्स आर गोइंग टू चैलेंज दी लीगैलिटी ऑफ समथिंग। प्रपोज भी कर दिया, इंटेग्रिटी भी है, लड़की ने तो भी मना कर दिया। वेरी बैड। क्यों मना कर दिया? कह रही है सर तुम्हारे पास एप्टीट्यूड ही नहीं है, प्रपोज करने का तरीका ही नहीं आता तुम्हें। मैं रास्ते से जा रही थी, तुमने आवाज लगाई मैडम बात सुनोगे 1 मिनट, शादी करोगे मुझसे? ऐसे थोड़ी शादी होगी। एप्टीट्यूड होना चाहिए। CSAT में सर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, किस तरीके से काम करना चाहते हो। UPSC एथिक्स के पेपर में आपकी वैल्यू सिस्टम को टेस्ट कर रही है। यहाँ पे हम आपका एप्टीट्यूड, द पोटेंशियल टू ग्रो टेस्ट कर रहे हैं। एप्टीट्यूड मैडम, एप्टीट्यूड क्यों टेस्ट किया जाता है? अगर आपने मूवी कोई देखी हो, रॉ वाली टाइगर एक मूवी है मैडम, सलमान खान की, आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें कोडिंग डी कोडेड आपको मैसेजेस मिलेंगे, आपको डी कोड करना है क्या लिखा है इसमें, इसलिए आपको रीजनिंग का टेस्ट लिया जाता है। न्यूज़पेपर में इतना बड़ा आर्टिकल आ गया, एक 500 पेज की रिपोर्ट आ गई मैडम आपके पास, आपको बोल दिया इसको समरी बना के CM को भेजनी है शाम को, 4 बज गए हैं और बोला गया 3:30 बजे भेजनी थी। आपको ये इन्फॉर्मेशन 4 बजे मिली है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे ही चलता है। कब चाहिए रिपोर्ट? 3:30 पे। आपको मैसेज कब मिला है? 4 PM। पहले लेट चल रहे हो। 100 पेज की रिपोर्ट है, उसको जल्दी से कैसे पढ़ के कैसे समराइज करेंगे, क्या हमारा कंटेक्स्ट है, इसी के लिए कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है। हर चीज का पर्पस है। द डे वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस एनीथिंग in your life, not only in UPSC, madam, you will be identify the value behind this. कोई भी आदमी कोई भी काम करेगा, उसके पीछे कुछ अच्छा मोटिव होगा, कुछ बुरा मोटिव होगा, कहीं ना कहीं कोई वैल्यू सिस्टम इन्वॉल्व है। फाइन, यहाँ पे आते हैं सर वैल्यू सिस्टम पे, जो केशव में V है मैडम, हमारा वैल्यू सिस्टम है। फाइन, जनरली मैं वैल्यू सिस्टम किसी भी सेमिनार में सबसे लास्ट में डिस्कस करता हूँ, आपके साथ पहले कर दिया है। केशव के बाद मैडम K के बाद हमारे पास एक और चीज़ है, एजुकेशन। फाइन, वैसे याद रखो आप लोग, एजुकेशन। एजुकेशन में मैडम सबसे पहले आपको चीज़ों को कंसाइज कर लेना है सर, एक स्केलेटल बना लेना है हर क्वेश्चन का विद रिस्पेक्ट टू मेंस। प्री में जो हमने डिस्कस कर दिया सर, प्री के लिए। मेंस के लिए फर्स्ट टॉपिक है, हिस्ट्री में आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक है मैडम। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, अब में से किसी ने UPSC का मेंस लिखा है? हाँ जी। कोई ऐसा है सर जो कंसिस्टेंटली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता है डेली और रेगुलरली, इंटरमिटेंटली कोई करता हो आंसर राइटिंग? आप दोनों करते हो और कोई लिखता नहीं आंसर? यदि आंसर नहीं लिखोगे तो प्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। तो जैसे मैडम YouTube पे देख के खाना बनाना नहीं आ सकता, वैसे ही आंसर लिखे बिना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। कोई भी बुक पढ़ के ड्राइविंग नहीं सीख सकते, कितना भी पढ़ लो, और इंडिया में तो वैसे नहीं सीख सकते। बाहर तो फिर बता देंगे आपको कि वहाँ जाना है, तो ड्राइवरलेस कार्स तो बुक्स भी चलेंगी ना बॉस, उनको तो बुक ही पढ़ानी है। बट इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, कोई पता नहीं, आप सीधे जा रहे हो, यहाँ से आएगा वो बोलेगा मैंने हाथ दिया था तुमने देखा नहीं, ये कॉमन है इधर। फाइन, जो हमारा एजुकेशन बेस्ड सिस्टम है सर, आपको छोटे छोटे स्केलेटन्स बनाने हैं हर क्वेश्चन के। हिस्ट्री पे UPSC ने आसान क्वेश्चन पूछ लिया 2017-18 में। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, उसको और भी सिंपल कर देते सर, व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट आर्ट एंड कल्चर। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, हाँ जी।
शैलेंद्र सर, व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट आर्ट एंड कल्चर? हाँ जी, हाँ जी सर, मैडम, एनीवन? Social norms and rules. हाँ जी, Conserving social norms and कंजर्विंग सोशल नॉर्म्स सर, नंबर 1। हाँ जी, आर्ट एंड कल्चर को क्यों प्रोटेक्ट करना है? रोज नए नए आर्टिकल्स मिल रहे हैं, मोदी जी मूर्ति बना रहे हैं, करना ही क्यों है सर? क्यों कर रहे हैं, कभी सोचा क्या? हाँ जी सर, स्केलेटन क्या है मैडम? आपकी जर्नी को थोड़ा आसान कर देते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आर्ट एंड कल्चर क्यों प्रोटेक्ट करना है सर, उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है। पुराने टाइम में जाओगे, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, मैडम जो टेम्पल्स थे वो रिलीजियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते थे। रिलीजन कहाँ पे आता है? सोसाइटी में। कौन से पेपर में आता है? जीएस 1 में। अभी 1 में घूम रहे हैं। जीएस 2 में जाओगे, मैडम पुराने टाइम की पॉलिटी कैसी थी, गवर्नेंस कैसी थी, आर्ट एंड कल्चर बताता है, जीएस 2। हमारे रिलेशन मेसोपोटामिया के साथ कैसे थे, रोमन एम्पायर के साथ कैसे थे, कौन बताता है? जीएस 2, आर्ट एंड कल्चर। एक ही स्केलेटन में चल रहे हैं। अभी याद नहीं आ रहा था सर क्या लिखना है, धीरे धीरे याद आना शुरू हो गया कि अच्छा एक पॉइंट हिस्ट्री वाला लिख देते हैं, एक पॉइंट उसकी पर्टिकुलर लोकेशन पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्यों बनाया था ये, उसका कुछ ना कुछ जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस होगा, कुछ ना कुछ सोसाइटल सिग्निफिकेंस होगा, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होगा, कुछ आईआर का होगा, कुछ इकोनॉमी का होगा, कुछ सिक्योरिटी का भी होगा, कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट का भी होगा, कुछ एनवायरनमेंट का भी होगा, कुछ साइंस एंड टेक का भी होगा। आंसर आ जाएगा। इकोनॉमी फर्दर डिवाइड कर सकते हो अगर आपको बहुत ही लंबा आंसर लिखना है। पहले तो सर यही आना चाहिए कि सोशल पर्सपेक्टिव क्या है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक और सेक्टर। जब टाइम के साथ आप ग्रो करोगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तब मैडम सोशो पॉलिटिकल एक पॉइंट बन जाएगा, सोशो इकोनॉमिक एक पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि पहले हमारे पास पॉइंट ही 4 थे, अभी हमारे पास 10 पॉइंट हैं, लिखने हमें 5 हैं। तो मैडम ऐसा नहीं है कि 5 पॉइंट छोड़ दो, ट्राई टू कंसाइज दैट कंटेंट एंड मेक 1 पॉइंट विद द हेल्प ऑफ 2। यूपीएससी आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको 10 मार्कर क्वेश्चन में डिमांड की जाती है 150 वर्ड्स की, 15 मार्कर में 250 वर्ड्स की। सर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 150 वर्ड्स इज MR, कोई भी स्टोरी लिख के काम चल जाएगा। एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास 3000 5000 वर्ड की नॉलेज है, उसको 150 वर्ड्स में लिखो। पेज भरना बहुत ही आसान काम है, काम की बात करना बहुत ही मुश्किल है। डिनर में क्या है, अगर आप ये स्टार्ट करोगे, टेबल अच्छा है, चेयर अच्छी है, प्लेट्स भी अच्छी हैं, डिस्पोजेबल प्लेट भी हैं, सिरामिक प्लेट भी हैं, पेज एक ख़त्म हो गया मैडम। डिनर के बाद आप हैंड वॉश भी कर सकते हो। ये तरीके के हमारे पास सोप अवेलेबल है, टिश्यू पेपर भी अवेलेबल है, वैले पार्किंग भी है, आपको बाहर छोड़ दिया जाएगा। ये हमने 2 पेज में लिख दिया, क्वेश्चन इतना ही है, डिनर में क्या है वो तो अभी तक पता नहीं चला। एग्जामिनर 2 पेज पढ़ेगा, दिल से वो चाहता है -5 नंबर दे आपको, बट वो दे नहीं सकता। काम की बात करनी है। कई बार हम नॉर्मल डिस्कशन में भी कहते हैं क्रक्स मैटर क्या है, एग्जामिनर 150 वर्ड्स में आपसे क्रक्स मैटर ही एक्सपेक्ट कर रहा है। और आप जो लंबी कहानी पढ़ते हो ना, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सिर्फ आपका इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए बनाई जाती है। क्वेश्चन आएगा सर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो एरिया है वो कम हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। रेड कॉरिडोर सबने सुना होगा सर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। पहले हमारे पास मल्टीपल 100+ डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड थे। अभी नंबर उसका डिक्लाइन हो रहा है कंटिन्यूसली 2014-15 के बाद। क्यों हो रहा है डिक्लाइन, उसका एक स्केलेटन बनाना है। जो मैडम पहले हमने बात करी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में, इंटरनल सिक्योरिटी है, एक स्केलेटन बनाना है। मैडम कहीं पे भी सर्कमस्टेंसेस चल रही हैं, इंस्टेबिलिटी चल रही है, 2 रीजन होते हैं इंस्टेबिलिटी के। कौन कौन से? सिक्योरिटी इश्यूज, डेवलपमेंट इश्यूज। सिक्योरिटी इश्यूज एंड डेवलपमेंट इश्यूज। डेवलपमेंट को फर्दर डिवाइड कर सकते हो, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, पॉवर्टी भी हो सकती है, डिजास्टर प्रोन एरिया हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर में जा सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हो, छत्तीसगढ़ में जा सकते हो, झारखंड में जा सकते हो। डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है सर? पॉलिटिकल इश्यूज है। अक्सर आपने अक्सर सुना होगा डबल इंजन गवर्नमेंट, बार बार न्यूज में एक टर्म यूज की जाती है डबल इंजन। सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट सेम है तो कहते हैं डबल इंजन सरकार चल रही है। होना क्या चाहिए सर? ट्रिपल इंजन।
लोकल लेवल गवर्नमेंट अगर सेम गवर्नेंस की नहीं चल रही है, सेम पार्टी सिस्टम नहीं चल रहा है, यहाँ पे ये नहीं मैडम हम कह रहे हैं कि बीजेपी 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 हो या कांग्रेस 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 हो, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। एक प्रिंसिपल होता है सर, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी क्या कहता है कि जो काम आपका बेटा कर सकता है आपको करने की जरूरत नहीं है, और वो काम होना किसके लिए है? आपके बेटे के लिए। जो काम मैडम लोकल लेवल पे किया जा सकता है वहाँ पे स्टेट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट को सिर्फ सपोर्टिंग एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। जो काम स्टेट लेवल पे हो सकता है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू रीड फॉर मेंस। क्वेश्चन आ गया सर आपके लिए सिंपल, हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस कर दिया सर। सोसाइटी पे आ जाते हैं। पेपर में आता है सर इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी इज देयर इन GS1 एंड इन GS2 सोशल जस्टिस। इंडियन सोसाइटी में यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड इम्पैक्ट्स ओनली। GS1 में ओल्ड एज के साथ मैडम क्या क्या इश्यूज है, वुमेन के साथ क्या इशू है, अर्बनाइजेशन के क्या इशू चल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का वुमेन पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का फार्मर्स पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का यूथ पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, ऐसे टॉपिक्स आएंगे GS1 में। इसके अलावा कम्युनलिज्म क्या है, रीजनलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ GS1 इंडियन सोसाइटी। सिर्फ प्रॉब्लम्स और इम्पैक्ट्स को इन्यूमरेट किया जाएगा GS1 में। इसके सोल्यूशंस कहाँ हैं? GS2 आफ्टर पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस आर द टॉर्च बीरर्स फॉर सोशल जस्टिस। अगर सर आपके पास आर्टिकल नंबर 17 उसके लिए सिविल लिबर्टीज एक्ट आपके पास नहीं है तो सोशल जस्टिस कैसे करोगे? जस्टिस के लिए, और ये जो मैडम सोशल एट्रोसिटीज हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, दैट इज देयर इन GS1 इंडियन सोसाइटी। अनटचेबिलिटी वहाँ पे आएगा। कास्ट सिस्टम कैसे जनरेट हो गया, एवोल्यूशन कैसे हो रही है कास्ट सिस्टम की, नियो कास्ट सिस्टम क्या है, नियो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गई मैडम सोसाइटी में। Now you are not discriminated only on the basis of your caste, religion, color. You will be discriminated on the basis of your clothes, brand of your clothes, place in which you are living. मोबाइल कौन सा यूज़ करते हो, गैजेट कौन से हैं आपके पास, कपड़े कौन से पहनते हो, कौन सी गाड़ी है आपके पास, पेन कौन सा यूज़ करते हो, कौन से पेपर पे लिखते हो, क्लासमेट का रजिस्टर यूज़ करते हो या काले काले पेपर पे लिखते हो, इसके बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। न्यू फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमको याद मैडम सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड 5 पॉइंट रखने हैं, वही 5 पॉइंट न्यू डिस्क्रिमिनेशन भी आएंगे। वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, ग्लास सीलिंग, कोई भी क्वेश्चन आता है जिसका थीम डिस्क्रिमिनेशन है वो वहीं पे एडजस्ट हो जाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन आज भी है, हमेशा रहेगी, फॉर्म चेंज होती रहेगी। करप्शन पहले भी थी, करप्शन आज भी है, करप्शन कल भी रहेगी, फॉर्म ऑफ करप्शन चेंज होती जाएगी। यहीं से मैडम स्टार्ट किया था, चेंज होती जाएगी हमेशा, चेंज हमेशा रहेगी। अगर चेंज नहीं आ रही है तो इट मीन्स मैडम कुछ हो ही नहीं रहा। करप्शन और ब्राइबरी को ग्रीस ऑफ इकॉनमी भी बोला जाता है। इससे इकॉनमी में काम ज़्यादा जल्दी होते हैं। गांधी जी ने यही बोला था, अगर मैं नहीं हो तो मेरे होने से काम हो जाएगा। वो नोट पे गांधी जी लगा दिए इसलिए कि पैसे दे दो काम हो जाएगा आपका। इंडियन ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, ग्रोथ वहाँ से हो रही है। इंडियन सोसाइटी में सबसे पहले आपको एक कीवर्ड बना लेना है मैडम। इंडियन सोसाइटी में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं? वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज वन थिंग। वनरेबल सेक्शन ऑफ इंडिया, वनरेबल सेक्शन ऑफ इंडिया में मैडम क्या है? वुमेन, चाइल्ड, लेबरर्स, हाउस होल्ड वर्कर्स, माइग्रेंट्स, बेगर्स, ओल्ड एज, everyone is part of vulnerable section of the society। मैडम आप एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? हाँ जी, फाल्गुनी। फाल्गुनी जी ये बताओ, why women need women security, why not men? हाँ जी मैडम, वुमेन सिक्योरिटी वुमेन को क्यों चाहिए, मैन को क्यों नहीं चाहिए? व्हाट अबाउट मैन सिक्योरिटी? हाँ जी सर, नहीं चाहिए? हाँ जी सर, सिक्योरिटी चाहिए। बात मैडम बार बार मीडिया में वुमेन सिक्योरिटी वुमेन सिक्योरिटी वुमेन सिक्योरिटी की हो रही है, मेन सिक्योरिटी की क्यों नहीं होती? मैडम वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो इंसान वनरेबल है उसको सिक्योरिटी चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो रही है ना, इंटरनल सिक्योरिटी की बात होती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात होती है, सोशल सिक्योरिटी की बात होती है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात होती है,
कहीं पे भी चले जाओ मैडम, सिक्योरिटी वहीं चाहिए जहां पे वनरेबिलिटी है। जहां पे वनरेबिलिटी है मैडम, वहां पे हमें सिक्योरिटी चाहिए। वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, व्हाई दे आर वनरेबल? व्हाई दे, सर वापिस आ जाता हूं 1 मिनट के लिए। सर जैसे हमने देखा डिस्क्रिमिनेशन कितने भी प्रकार की हो सकती है। आपको क्वेश्चन के लिए एक स्केलेटन बना लेना है कि डिस्क्रिमिनेशन का ये स्केलेटन है। अब वुमेन डिस्क्रिमिनेशन पूछो, कास्ट, कलर, जेंडर, कम्युनल, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है मैडम, स्केलेटन वही रहेगा। आपकी बॉडी को कहीं पे रख दिया जाएगा मैडम, हम सबका स्केलेटन सेम है, डीएनए सबका अलग अलग है, फाइन, और हमारी अपीयरेंस सबकी अलग अलग है। आप सबके आंसर अलग अलग होंगे, अपीयरेंस, बट स्केलेटन सबका सेम है। डिस्क्रिमिनेशन वाला क्वेश्चन सेम चीज डिमांड करता है। वनरेबिलिटी क्यों है सर आपके पास? ऑटोनॉमी, वनरेबल सेक्शन में कौन से सेक्शन के पास है? किसी सेक्शन के पास नहीं। ऑटोनॉमी, डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी है आपके पास। आर यू गोइंग टू टेक ऑल द डिसीजंस ऑफ योर लाइफ? वनरेबिलिटी, वनरेबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन कम है मैडम, adoption of technology कम है, all vulnerable sections of the society। बिहेवियरल चेंज का इशू है, सेपरेट हेल्थ कंसर्न्स हैं वुमेन के, ओल्ड एज के, चाइल्ड के, बैगर्स के। क्यों? वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कोई भी वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए एक ही स्केलेटन बनेगा, उसी स्केलेटन के बेसिस पे आंसर इवॉल्व होता जाएगा। गिन के आपको सिर्फ 10 स्केलेटन बनाने हैं मैडम, ओनली 10 फॉर GS1, 10 फॉर GS2, 10 फॉर GS3, 10 फॉर GS4। GS3 में 15 बनेंगे। कभी टाइम मिलेगा मैडम तो डिटेल में एक एक स्केलेटन भी डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी हमारा एजेंडा ये है आज का कि पढ़ना कैसे है और अपनी एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर अगर वुमेन का वनरेबल सेक्शन अलग से पढ़ोगे, फिर बैगर्स का पढ़ोगे, तो फिर वनरेबिलिटी खत्म होगी 5-6 साल में। एक बार समझ लिया कि ये 10 पॉइंट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशन इनकी कम होती है, ऑटोनॉमी मैडम इनके पास नहीं होती, हेल्थ कंसर्न्स इनके होते हैं। मैं आपके साथ एक PDF भी शेयर कर दूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि ये वनरेबल सेक्शन है, यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स हैं। उसके बाद मैडम व्हाट यू नीड टू एनहांस व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रीड, यू हैव टू रीड ओके दिस इज द एग्जांपल रिलेटेड विद वुमेन, उसको वहाँ ऐड कर देना है। कितनी रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की, लोकसभा में कितनी है, राज्यसभा में कितनी है, पंचायत में कितनी है, एजुकेशन में कितनी है, हेल्थ में कितनी है, हमने लिख दिया लो रिप्रेजेंटेशन, उसको सब्सटेंशिएट कर देना है बाद में एक पॉइंट उठा के। चिल्ड्रन को पूछ लिया, सेम काम करना है, फाइन। हजार्ड्स आती है ना आपकी लाइफ में, हजार्ड्स, थोड़ी पंजाबी एक्सेंट वाला फर्क हो सकता है, फाइन, थोड़ा फर्क है ना, और मेरे को भी ऐसा रोज कोई ना कोई बोलता ही है, बट मैं यूज्ड हो गया हूँ। सर जिंदगी में समस्याएं आनी हैं, ज्यादा समस्या का इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा? मार्जिनलाइज सेक्शन कौन सा होता है? वनरेबल सेक्शन। सर कोविड आ गया, डिजास्टर है ना मैडम, ज्यादा इम्पैक्ट किस पे हुआ? वनरेबल सेक्शन पे। बारिश आ जाएगी तेज, फ्लड आ जाएगा, साइक्लोन आ जाएगा, ज्यादा इम्पैक्ट किस पे होगा? वनरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ग्लोबल रिसेशन आएगा मैडम, ज्यादा इम्पैक्ट किस पे होगा? वनरेबल इकोनॉमी पे। वनरेबल कौन होता है? जो एक ही चीज के बारे में सोचता है, वेनेजुएला, पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी। कुछ भी प्रॉब्लम आ गई मैडम, वेनेजुएला की इकोनॉमी कोलैप्स क्यों हुई है? वनरेबल कौन होता है? जो एक ही चीज के बारे में सोचता है, डाइवर्सिटी है ही नहीं उसके पास। डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। Whenever you are going to prepare, when we are ready with one skeleton for vulnerable section of the society, सर सपोज एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ गए वनरेबल सेक्शन के, तो आपके पास 10 पॉइंट होने चाहिए मैडम वनरेबल सेक्शन से रिलेटेड। 5 इधर लिख देंगे, 5 उधर लिख देंगे, स्टोरी खत्म हो जाएगी। वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लाइक दिस यू हैव टू प्रिपेयर इंडियन सोसाइटी। इन द सेम मैनर मैडम आइडेंटिफाई 10 पॉइंटर्स विच वी नीड फॉर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में मैडम आपको एक ग्रीन स्पेस चाहिए। ग्रीन स्पेस के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए? 4.5 मेजर्स होंगे सर, वही इन्वायरमेंट में लिखे जाएंगे। यूपीएससी ने एक आसान क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हो? अभी तक हमने क्या पढ़ा है सर? हिस्ट्री में हम आर्ट एंड कल्चर पे फोकस कर रहे हैं, अच्छे से फोकस नहीं कर रहे सर, इसलिए हमारे पास ज़्यादा टूरिज्म नहीं आ रहा। टूरिज्म नहीं आ रहा तो हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, इसलिए पोटेंशियल जीडीपी अचीव नहीं हो रही है।
वनरेबल सोसाइटी है, आज भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वनरेबल है, डिजास्टर्स मैडम आज भी आ रहे हैं, आज भी हम मैनेज नहीं कर पा रहे, सोसाइटी आज भी वनरेबल है, इसलिए एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज नॉट इफेक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव पोटेंशियल जीडीपी। डिजास्टर्स हैं, डिजास्टर की बात करी, कहीं पे मैडम साइक्लोन आ रहा है, हमारे पास डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव पोटेंशियल जीडीपी। अभी तो GS1 पढ़ रहे हैं, GS1 का यूज GS3 में भी होगा। सिलेबस इज वेरी ऑर्गेनिक, जैसे मैडम आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, एवरी डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट, योर आंसर शुड बी वेरी मच ऑर्गेनिक। सर कभी भी आप नहाना स्टार्ट करोगे तो पानी सर पे गिरेगा या पैरों पे गिरेगा, ऐसा तो नहीं है पहले एक हाथ धो लिया फिर एक पैर धो लिया, तो सिस्टम मैडम बहुत ही ऑर्गेनिक चलेगा। अगर ऑर्गेनिक एग्जामिनर को नहीं मिलता है तो एग्जामिनर भी इरिटेट हो जाएगा। आप रेस्टोरेंट में जाओगे, खाना ऑर्डर करोगे, सबसे पहले आप बोलोगे मेरे को पानी दे दो या मसाला पापड़ दे दो, ABCD। वो ऐसा तो नहीं है सबसे पहले आपके हाथ धोने के लिए मैडम वो लेमन वाटर लेके आ गया कि सर आप हाथ वॉश कर लो, बाकी बाद में देखेंगे, खाना बाद में आएगा, या पहले बिल ले लो खाना बाद में देंगे। सिस्टम पूरा ऑर्गेनिक है मैडम। सी द डॉक्यूमेंट, वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट इज देयर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्या होना चाहिए? हाँ जी, प्रेमल उससे पहले आ गया। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? ये आपकी टेरिटरी है, 1 to 4 टेरिटरी। उसके बाद टेरिटरी में कौन रहेगा? नेक्स्ट 5 to 11 सिटीजन्स। उनके राइट्स की बात करते हैं मैडम, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कैसे अचीव करेंगे? DPSP। DPSP के साथ साथ वो तो मैडम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये सब चीज़ें हम कैसे अचीव करेंगे? उसके साथ ही मैडम गवर्नेंस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, प्रेसिडेंट आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, एवरीथिंग। अगर इनमें भी लैप्स है तो कौन आएगा? जुडिशरी आएगी। पूरा ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट बना के दे दिया। आंसर शुड बी दैट मच ऑर्गेनिक। Whenever you are going to read Indian society, that much must be that much organic. You should keep this in your mind while reading Indian society. What is the impact of science and technology on Indian society? What is the impact of growth of GDP? 5 trillion economy बनानी है सर, what would be the impact of 5 trillion economy on Indian society? Indian society में क्या है? ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का? वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा? इन दिस ऑर्गेनिक फेज्ड मैनर यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। दिमाग को खुला रखना है। Whenever you are studying, don't say I am studying Indian society, I am preparing for UPSC. There is an organic syllabus. Try to link society with different portions of the syllabus, not same subject. Same subject में तो बहुत ही आसान है कोरिलेट करना। वो हमने बता दिया ना मैडम, वनरेबल सेक्शन एक टॉपिक है, उसके ऊपर 5 पॉइंट है, तो वो हर वनरेबल सेक्शन को कवर करेंगे। सर ओल्ड एज में वही प्रॉब्लम है जो वुमेन फेस कर रही है, ना उनकी कोई सुनता है ना वुमेन की कोई सुनता है। रिप्रेजेंटेशन कम है, ऑटोनॉमी कम है। घर में एक ओल्ड दादाजी होंगे 90 साल के, कोई नहीं सुनता। और मैडम ये भी पता है पॉलिटिशियन को वो वोट देने भी नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं सुनते, उनकी कोई नहीं सुनेगा। वुमेन का भी पता है कि जहाँ बोल देंगे कि बीजेपी को वोट देनी है बीजेपी को दे देंगे, कांग्रेस को देनी है कांग्रेस को दे देंगे। ऑटोनॉमी नहीं है। ये हर वनरेबल सेक्शन के साथ है। वनरेबिलिटी, अगर जिंदगी में कभी भी कोई भी समस्या आएगी तो ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे होगा? वनरेबल सेक्शन पे। वनरेबिलिटी को दूर करने का तरीका क्या है? उसी की बात कर रहे हैं मैडम, कैपेसिटी बिल्डिंग। केशव आ जाएगा तो आपकी वनरेबिलिटी दूर हो जाएगी। आंसर नहीं लिख पा रहे हो, क्यों? कैपेबल नहीं हो। कैपेबिलिटी एनहांसमेंट केशव। और एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आ जाता है जो आप पढ़ के नहीं गए तो मैडम इट मीन्स यू आर वनरेबल। वनरेबिलिटी को दूर करने का सिंपल सा तरीका है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, वुमेन की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। इंडियन सोसाइटी is revolving around these topics. Whenever you are going to enter in GS2, you will see social justice. Social justice में मैडम ये जितनी भी प्रॉब्लम्स इंडियन सोसाइटी में आ रही हैं इनको ओवरकम कैसे करना है वो सोशल जस्टिस है। बैगिंग से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है सर? GS2 उसका सोल्यूशन आपको देगा। आफ्टर पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। GS1 इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस। एक और एग्जांपल ले लेते सर, ज्योग्राफी। GS1 सर, ज्योग्राफी का आंसर लिखा है कोई? कौन सा? हाँ जी, क्लाइमेटोलॉजी पे जो मास और एयर सर्कुलेशन, एयर मास पे क्वेश्चन लिखा है। एक टॉपिक है ज्योग्राफी के सिलेबस में, इंडस्ट्रियल लोकेशंस। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों लोकेटेड है? शुगर इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों है?
हर पेपर में कोई भी GS1 का पेपर उठा के देख लो मैडम, ये क्वेश्चन मिलेगा। एक स्केलेटन बना लो, लिख लो। फ्रेम टेल TELL वाटर। सर ये लाइब्रेरी यहां पे क्यों लोकेटेड है? ये लाइब्रेरी यहाँ पे क्यों लोकेटेड है? मैडम इसका आंसर भी यही मिल जाएगा। आप सब लोग यहाँ क्यों बैठे हो, इसका आंसर भी यही है। कोई भी इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्यों होती है, उसका आंसर यही है मैडम, P इज फॉर पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेदर देर इज a rebate, whether there is a socio-economic special economic zone is there, whether any economic rebate is there, whether any taxation rebate is there, whether any discount or any free electricity is there, whether any transportation facility is there. Number 1 P is government policies. अगर मैडम यहाँ पे नहीं आ रही है तो पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा है। P दूसरी चीज मार्केट होनी चाहिए। P R is for resources, availability of resources. E either electricity or energy, electricity, energy or environment. Another E will come in TEL, TEL, electricity, energy और environment favorable होना चाहिए। राजस्थान में वहाँ चले जाओ सर जहाँ पे पानी नहीं मिलता, वहाँ पे स्टूडेंट बैठ के पढ़ेंगे क्या? वाइबिलिटी नहीं है। वाइबिलिटी तभी होगी अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए कि हाँ जी लातूर के इस एरिया में हम आपको ये वाली एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देते हैं, हमको ये एरिया डेवलप करना है। तो पॉलिसीज के साथ दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैन बी मिनरल्स, रिसोर्सेज कैन बी फंडिंग, ABCD। रिसोर्सेज मैडम पॉलिसीज अपने आप में एक क्वेश्चन है। फेवरेबल पॉलिसीज, पॉलिसी पैरालिसिस, स्क्यूड पॉलिसीज, पॉलिसीज अपने आप में एक टॉपिक है। बट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज फेवरेबल है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जा सके। रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है इसलिए ये इंडस्ट्री यहाँ पे लगाई जा रही है। एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और एनवायरनमेंट फेवरेबल है इसलिए ये इंडस्ट्री यहाँ पे लगाई जा रही है। M मार्केट यहाँ पे अवेलेबल है इसलिए ये इंडस्ट्री यहाँ पे लगाई जा रही है। T टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल है इसलिए इंडस्ट्री यहाँ पे लगाई जा रही है। E अगेन मैडम रेपिटेटिव फ्रॉम द प्रीवियस E's। देन L ट्रिपल L लैंड, लेबर एंड लॉजिस्टिक्स। लैंड चाहिए कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए, लैंड, लेबर एंड लॉजिस्टिक्स, ये तीन चीजें अवेलेबल होनी चाहिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए। बीट सर्विस सेक्टर, लैंड, लेबर। लेबर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। कौन सी लेबर चाहिए, स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, कौन सा स्किल चाहिए, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, मिसमैच इज देयर। इंडिया में मैडम गरीबी अलग मुद्दा है और इनइक्वालिटी अलग मुद्दा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा, आप कभी पंजाब जाओगे सर तो आपको फॉर्च्यूनर ऐसे मिलेगी जैसे यहाँ पे साइकिल चल रहे हैं। छोटी गाड़ियाँ कम मिलेंगी, बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी, बट वहाँ पे आपको गरीब लोग भी मिलेंगे, फार्मर सुसाइड भी वहाँ पे मिलेगा। इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी बोथ आर डिफरेंट मैटर्स, डिफरेंट टॉपिक्स। ऐसे ही एक टॉपिक है सर अग्रेसिव मॉडर्निटी और कंस्ट्रक्टेड हैप्पीनेस। अग्रेसिव मॉडर्निटी क्या है? जल्दी जल्दी आप चीज़ों को बदल देना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो मैडम जल्दी जल्दी। अग्रेसिव मॉडर्निटी, ऑल दी साइबर, whenever you are under the clutches of cyber fraud, one element is aggressive modernity। आप चाहते हो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, कल 2 लाख हो जाए। स्टॉक मार्केट में, किसी भी मार्केट में लॉस कब हो रहा है? अग्रेसिव मॉडर्निटी पे। आप क्या चाहते हो सर? आपने कल स्टार्ट किया पढ़ना, आप सोचते हो कि एक दिन में लक्ष्मीकांत हो जाए, फिर लक्ष्मीकांत ही होगा, लक्ष्मीकांत नहीं हो सकता। इट विल टेक टाइम। अग्रेसिव मॉडर्निटी पे मैडम कभी नहीं जाना, कंस्ट्रक्टेड हैप्पीनेस पे कभी नहीं जाना। Constructed happiness and aggressive modernity are going to decrease your productivity. We have to enhance our productivity with these skeletons. कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा सर इसके अराउंड घूम जाएगा। वाटर इज फॉर पानी, पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, लाइब्रेरी भी बनानी है तो पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए। होटल इंडस्ट्री बनानी है, पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनानी है, पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए। सीमेंट फैक्ट्री, मेडिसिन फैक्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, कहीं पे भी आपको जाना है मैडम, आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाओगे, पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए। लोग तो रहेंगे ना वहाँ। नई टाउनशिप बनानी है, उसके लिए अलग से कीवर्ड है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल डिस्कस, बट पॉइंट इज यू हैव टू मेक दीज स्केलेटन्स। सेम मैटर नेक्स्ट पेपर में आता है मैडम, GS2, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जस्ट नाउ वी डिस्कस, सोशल जस्टिस में क्या आएगा? फाइन। ऐसे ही मैडम एक क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, उसका भी आपको स्केलेटन बना लेना है। एक क्वेश्चन आता है सर गवर्नमेंट बॉडीज पे, कोई ना कोई क्वेश्चन आता है ना, कैग में क्या क्या इशू चल रहे हैं, जुडिशरी में क्या इशू चल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वाली ऑर्गेनाइजेशन है मैडम, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्यों नहीं अच्छे से काम कर रही?
ट्रिपल पी आई। हाँ जी बताओ जी सर, नेम एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दो, आपके पास फ्री हैंड है। हाँ जी मैडम, आपको लगता है ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रही है? हाँ जी, ये लाइब्रेरी अच्छे से काम कर रही है? कर रही है ना? क्यों अच्छे से काम कर रही है? पीपल, लोग कौन से हैं? 1P इज फॉर पीपल, स्किल्ड। प्रोसेस कौन सा है? ऑटोनॉमी। पावर्स, ऑटोनॉमस पावर्स हैं। आई, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए ग्रोथ हो रही है। किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ, पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं सर, वैकेंसीज आर देयर, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। पीपल, ट्रिपल पी इज पीपल, पावर, प्रोसेस, आई इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। लोग ही नहीं है काम करने के लिए, वैकेंसी ज़्यादा हैं। अगर लोग हैं तो देखना पड़ेगा वो कितने स्किल्ड हैं। कितने पुलिस वाले होंगे सर जो 20 साल पहले रिक्रूट हुए होंगे और उनको पता है कि साइबर क्राइम कैसे होता है? पता होगा उनको, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि 10 साल बाद कुछ साइबर क्राइम नाम की चीज़ आने वाली है, ये बिटकॉइन नाम की चीज़ आने वाली है। लोग हैं बट उनको पता नहीं है काम कैसा करना है। यहाँ तो फिर लोग ही नहीं है। अब लोग हैं आपके पास मैडम, CBI में चलते हैं, CBI को वेस्ट बंगाल जाना है, ममता बनर्जी परमिशन नहीं दे रहे। पीपल, पावर, प्रोसेस एंड इंफ्रा, कौन सी पावर्स आपके पास हैं उनको एक्सरसाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, डिपेंड करता है। अक्सर आपके मदर कहते होंगे मैडम घर में कि सारे डिसीजन मैं लूँगी, बट क्या वो ले पाते हैं? ऑटोनोमस पावर नहीं है, ऑटोनोमस पावर्स नहीं है। जब तक ऑटोनॉमी नहीं आएगी तब तक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं होगी। एक क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, DRDO वर्सेस इसरो, ऑटोनॉमी ज़्यादा है मैडम इसरो के पास, ग्रोथ पर्सपेक्टिव ज़्यादा है इसरो के पास। इंफ्रास्ट्रक्चर, आई, सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ आती है? केशव ओनली, तो पूरा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैडम सिर्फ डिजिटाइजेशन नहीं है, वो तो सबको पता है। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपको मैंने PC दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, बोल दिया PPT बना दो, अब आपने पहली बार सुना है PPT नाम की चीज़ होती है, तो इंफ्रा तो मैडम दे दिया पूरा, दिमाग में भी कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। अगर दिमाग खाली है तो आंसर शीट खाली रहेगी, या जैसे भर के आओगे एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मैडम सिंपल है कि डिनर में क्या है और हमने क्या लिख के दे दिया वो हमें पता ही है। स्केलेटन आपको बनाना है। दिस लास्ट दिस we discuss this triple PI with respect to any organization. Madam, all questions will be incomplete in GS2 if we are not going to mention articles. ज़्यादा आर्टिकल्स याद नहीं रखने हैं, रिमेंबर ओनली 20-30 आर्टिकल्स, बट वो 30 शुड बी देयर ऑन योर पेपर। गवर्नेंस से रिलेटेड सर, गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे तो आएगा। कोई एक कोर्ट की जजमेंट है मैडम गवर्नर पे रिलेटेड है, गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे आ रहा है। गवर्नर डिस्टर्ब कर रहे हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन को, यूटिलाइज दैट। कहाँ से मैडम स्टार्ट किया था हमने आज? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नर को अलग मत पढ़ो, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को अलग मत पढ़ो, दोनों को एक साथ पढ़ो, दोनों का कंटेंट एक क्वेश्चन में यूज करने की कोशिश करो। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम होगा। अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो उतना ज़्यादा टाइम लगता जाएगा पढ़ने में। ओनली रिमेंबर 30-40 आर्टिकल्स, रिमेंबर ओनली 20-30 कोर्ट केसेस। फॉर मेंस की बात कर रहे हैं। प्री में उसने पूछ लिया मैडम, प्री में इजी क्वेश्चन आता है कोर्ट केस से रिलेटेड, और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो वो कैटेगरी 4 में आएगा, उसका आंसर सिर्फ यूपीएससी को पता है। यहाँ तो पूछेगा आर्टिकल नंबर 21 राइट टू प्राइवेसी, पुट्टास्वामी केस राइट टू प्राइवेसी, 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया पिछले 4 साल में। आसान क्वेश्चन है सर, आसान क्वेश्चन है, सबको आता है। वो क्वेश्चन वही है जो फर्स्ट कैटेगरी में आता है। जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता सर, डिलिमिटेशन कितनी बार हो चुकी है अभी तक, ये इस बार क्वेश्चन पूछा है, तो आप फर्स्ट कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे अभी। कोचिंग इंस्टीट्यूशन थोड़ी बताएगा ये, कोचिंग इंस्टीट्यूशन तो लंबी कहानी सुनाएगा आपको। मेरे को बोलोगे डिलिमिटेशन कमीशन पे देना है, एक लेक्चर देना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा सर कि ये 4 बार हुई है, मैं लंबी कहानी सुनाऊंगा। ये आर्टिकल है, ऐसे होती है, इसमें ये पावर्स होती हैं, इसके पास ये पावर्स नहीं होती, इसकी रिपोर्ट को चैलेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसान है। जो उसने सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, कितनी बार अभी तक डिलिमिटेशन हुई है, वो किसी को आता नहीं था। ये प्री का टॉपिक है, प्री का। मेंस जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं सर GS2 में। नेक्स्ट पे आते हैं IR।
सोशल जस्टिस हो गया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एक टॉपिक छोटा सा पिक किया मैडम, स्केलेटन कैसे बनाना है। आईआर, आईआर सर किसके बेस्ड पे चलता है? आपका और मेरा रिलेशनशिप किस चीज़ पे बेस्ड है? आइदर सर इकोनॉमी पे बेस्ड है, आर्ट एंड कल्चर पे बेस्ड है, गवर्नमेंट की कुछ एक्सरसाइजेज हो रही हैं, कुछ हमने एग्रीमेंट्स कर दिए। ए, आर्ट एंड कल्चर, इसका इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ना कुछ ही योगदान होगा। फाइन, बिजनेस। सी, कमर्स। डी, डेमोक्रेसी। यूएसए बार बार क्यों कहता है हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना को सपोर्ट नहीं करते, कम्युनिस्ट कंट्री है। कोल्ड वॉर, रीजन क्या है मैडम? डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म। वियतनाम वॉर, डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म, आइडियोलॉजीज की वॉर चल रही है। नेक्स्ट, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया 2022 में, बहुत ही अच्छा वंडरफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन डिजाइन्ड बाय यूपीएससी। इन्वायरमेंट रिलेटेड पॉलिसीज आपके आईआर को कैसे इंपैक्ट करती हैं? मैडम किसी भी स्टूडेंट ने या किसी भी टीचर ने ये कभी नहीं पढ़ाया होगा एग्जाम से पहले कि हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं और इसका क्वेश्चन आईआर में आएगा, क्योंकि टीचर इतना सोच ही नहीं सकता। सोचेंगे तब जब हमें पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, बट वी नीड टू टेक दैट लेसन कि इफ दे कैन लिंक द क्वेश्चन ऑफ environment with IR, they can ask any question in GS1. There was a question, what is Arctic Council? GS1 क्या काम है इसका? GS1 में आर्कटिक काउंसिल एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में सुना होगा, GS1 2016। बताओ क्या काम है इसका? वहाँ पे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सुना है सर इसके बारे में? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना एक कॉरिडोर बना रहा है मैडम अंडर इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में से पास होता है। ये क्वेश्चन GS1 में आ गया। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है? नो। कहाँ से आएगा ज्योग्राफी? ये तो सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक है। क्लास में तो हमें सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक पढ़ाया गया था, अब GS1 में तो सिक्योरिटी टॉपिक ही नहीं है, तो लिखेंगे क्या? हिस्ट्री का टॉपिक है? नो। क्या लिखोगे हिस्ट्री का? सोसाइटी का टॉपिक है? नो। डिजास्टर मैनेजमेंट है? नो। क्या लिखोगे? पता नहीं। फिर वही लिखोगे कि डिनर में ये, और आपके पास चॉइस नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे एग्जाम में। ट्राई टू यूटिलाइज योर इंफॉर्मेशन ऑफ द ज्योग्राफी, दैट पर्टिकुलर पार्ट, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, व्हाट आर द इश्यूज, यू कैन लिंक द इश्यूज विद इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। टॉपिक है ना हमारे पास GS1 में, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद भारत में मैडम क्या क्या चेंजेस आएगी, ये तो टॉपिक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ पार्ट ऑफ दैट टॉपिक। लेस रिलेटेड विद ज्योग्राफी, मोर रिलेटेड विद इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये चेंजेस आ रही हैं बॉर्डर इश्यूज में, ये चेंजेस आ रही है। 1962 में ये वॉर हुई थी, ये वाला पार्ट पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ से ये कॉरिडोर जा रहा है। दिस इज द डायग्राम सर, दीज आर दी चैलेंजेस एंड दीज आर दी वे फॉरवर्ड। GS1 का क्वेश्चन है। अगर हम वहाँ पे बनाने लगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, क्या कहानी हम लिख रहे हैं जो हम पढ़ के गए थे GS2 में IR में, और GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी में। दोनों इन्फॉर्मेशन मैडम GS1 में पूछी जाएंगी। क्रक्स मैटर, योर प्रेपरेशन मस्ट बी दैट मच ऑर्गेनिक इन IR ऑल्सो। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन IR में आ जाएगा दोस्त, एथिक्स का क्वेश्चन IR में आ जाएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन IR में आ जाएगा। मैडम साइक्लोन होता है, क्रॉस बॉर्डर होता है ना, अरेबियन सी में अगर साइक्लोन आ रहा है या इंडिया कोई पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान में भी तो पोल्यूशन होगा। तो ये पोल्यूशन क्रॉस बॉर्डर है ना, ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो ये क्रॉस बॉर्डर है ना, तो IR का क्वेश्चन है ना। कोई पढ़ाता है IR? किसी बुक में नहीं लिखा होगा कि ये IR का टॉपिक है। IR में एक ही लाइन हर टीचर बोलता है कि देयर आर नो फ्रेंड्स एंड फोज, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन नेशनल इंटरेस्ट। सुना है नहीं? सुनिए ये लाइन, जो मैडम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सबने सुनी होगी। लोगों ने इसको रट्टा मार लिया है। मैडम आप बताओ, आपकी ज़िंदगी में कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो बिना इंटरेस्ट के चल रही है? बिना इंटरेस्ट के लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। वी ऑल आर सिटिंग हियर बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। वो लिख दिया एक बुक लिखने वाले ने कि नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं, कोई भी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है IR में। तो मैडम वो लाइन जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है, आपकी लाइफ में एप्लीकेबल है, आपके ऑफिस में एप्लीकेबल है, आपके घर में एप्लीकेबल है। कोई भी दोस्त या दुश्मन नहीं है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे पढ़ने आते हो सर, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। एक आपका दोस्त होगा बोलेगा मालब्रो पीनी है, दूसरा बोलेगा दूसरी सिगरेट पीनी है। इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है आपको कौन सी पीनी है, और या कोई भी नहीं पीनी है, वो भी आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है।
कोई भी दोस्त या दुश्मन नहीं है। आईआर में रिश्ते दो ही टाइप के हैं। हिंदी में बोला जाए तो या आप किसी के बाप हो या कोई आपका बाप है। और ये सिर्फ आईआर से रिलेटेड नहीं है, लाइफ इस पे ही चलेगी। या तो आप किसी के बाप हो या कोई आपका बाप है, इसी के बेसिस पे जिंदगी चल रही है। पूरी की पूरी स्टोरी आईआर इसी पे चलता है। इसी को कहते हैं सर हम नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया वांट्स टू बिकम अ मेजर पोल इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड। बार बार हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना चाहते हैं और इंडिया को मेजर पोल बनना है सर, ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है इंडिया को परमानेंट सीट चाहिए यूएन में, ये दूसरा टॉपिक है। दोनों का आंसर सेम है। अब मेजर पोल कैसे बनोगे मैडम? सिंस इंडिपेंडेंस हमने कोई भी मेजर राइट सिचुएशन नहीं देखी है, कोई भी सिविल राइट्स नहीं देखे हैं। सक्सेसफुल डेमोक्रेसी रन करते हैं। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, कोई राइट्स नहीं है, स्मूथली चल रहा है सब कुछ। लार्जेस्ट पीस कीपिंग फोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं सर। डिजास्टर में सबसे ज़्यादा हेल्प इंडिया प्रोवाइड करता है। बांग्लादेश को हम हेल्प कर रहे हैं, नेपाल को हमने हेल्प करी, श्रीलंका में हम इंटरवीन करते हैं, मालदीव में हम इंटरवीन करते हैं, म्यांमार में इंटरवीन करते हैं, अफगानिस्तान पे कमेंट करते हैं। फाइन, इंडिया इज अ मेजर पोल। और जब हम इतने सक्सेसफुली डेमोक्रेसी को रन कर रहे हैं तो हमें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर सेम है, क्वेश्चन अलग अलग है। ऐसा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या इंडिया मेजर पोल बन सकता है सर? सेम आंसर है। जिस आंसर को लिख के मैडम आप ये सब्सटेंशिएट कर रहे हो कि इंडिया मेजर पोल बन सकता है, वही आंसर ये सब्सटेंशिएट करता है कि इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। ये पूरी इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी का ऐसे लिखना है, इससे अच्छा ऐसे नहीं हो सकता। यही तो इंफॉर्मेशन लिखनी है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। चाइना की ग्रोथ ज़्यादा सर इंडिया के कंपैरिजन में, और चाइना में तो कम्युनिज्म है, तो इंडिया में भी कम्युनिज्म आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? मतलब पूरा वर्ल्ड है जो वो मतलब एक यूएसए है जो और सब अदर कंट्री है जो देखें तो मेजर पार्ट वो डेमोक्रेसी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। कम्युनिज्म में ये कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है एक दूसरे पे कि सर कम्युनिज्म इज बाउंड टू कोलैप्स वन डे। पॉलिटिकल साइंस में एक लाइन बोली जाती है मैडम, डेमोक्रेसी इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो तो आपने पढ़ी होगी। डेमोक्रेसी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, WORSE, अदर्स आर वर्स्ट। डेमोक्रेसी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, अदर्स आर वर्स्ट। कम्युनिज्म में एक दिन रिवॉल्ट हो नहीं है, बाउंड टू कोलैप्स। मैडम आपकी बात मानी जा रही है, नहीं मानी जा रही है, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। आपकी बात सुनी जा रही है, दिस इज ए डिफरेंट टॉपिक। आपकी बात सुनी जानी चाहिए। कोर्ट आपकी बात सुनता है ना? यस। आपकी बात के बेस पे डिसीजन आ रहा है नहीं आ रहा है, दो अलग मैटर है। अगर आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो एक दिन मैडम रिवॉल्ट होना ही है। बड़ी से बड़ी कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, एक दिन रिवॉल्ट होगा। अल्टीमेटली मैडम आपको क्या चाहिए? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। एक तो आप पढ़ते हो बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी इज नथिंग बट गिविंग वॉइस टू वॉइसलेस, पावर टू पावरलेस, स्पीच टू स्पीचलेस। अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही है मैडम तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। फाइन, दिस इज अ ट्रांजिशन फेस। डेमोक्रेसी का जो टॉपिक है मैडम वो GS 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, ऐसे में भी है। और ये पूरी की पूरी डिस्कशन इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर इंटरव्यू ऑल्सो। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास सिलेबस का टॉपिक है सर GS 3 इकोनॉमी। सेम मॉड्यूल मैडम, जस्ट नाउ आई डिस्कस्ड वन थिंग विद यू, पोटेंशियल GDP। whatever we have discussed till now equivalent to write a quality answer why we are not able to achieve potential GDP. Sir, same answer will be applicable. Why increase in NPS? NP क्यों increase हो रहा है सर? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, लैंड क्लियरेंस नहीं मिल रही है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है, ज्योग्राफी मैडम डिजास्टर आ रहा है, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है सर। मैंने यहाँ पे रोड बनाई थी, बारिश आ गई, रोड डूब गई, मैं क्या करूँ? पैसे कहाँ से दूंगा मैं? हाँ जी, जो भी अभी तक पढ़ा है, जितनी भी डिस्कशन अभी तक की है, सेम इंफॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज इन GS 3. Considering that I am not going to discuss GS 3 in elaboration, that is your headache to apply the discussion in GS 3. Then try to evaluate yourself whether you have gained something or not. This is 1 2 3 GS 3. एक छोटी सी चीज और मैडम, अगर आपको जब भी आंसर लिखना है नेक्स्ट इज स्किल्स। सर किसी को डाउट तो नहीं है मैडम, नॉलेज से हम क्या समझना चाहते हैं? सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए।
एजुकेशन सिंप्लीफाई चीज़ें कैसे करनी है मैडम, आर्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन पे काम करना है। फाइन सर, वैल्यू सिस्टम हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट इज स्किल। सबको आती है सर राइटिंग, सबको आंसर लिखना आता है। एक इंसान का आंसर आप पढ़ोगे, दूसरे का नहीं पढ़ोगे। क्यों? आंसर सर प्रीडोमिनेंटली दो चीज़ों पे खड़ा है, एक है आपकी प्रेजेंटेशन, दूसरा है आपका कंटेंट। और भी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर क्या लिखते हो आप, लैंग्वेज कैसी है आपकी, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रीडोमिनेंटली दो चीज़ों पे ध्यान देना मैडम, एक है आपकी प्रेजेंटेशन, दूसरी कंटेंट। सर जो गुड लुकिंग होता है ना, अगर एक लड़की गुड लुकिंग है तो आप उसको एक बार देखोगे, एक लड़का गुड लुकिंग है तो मैडम लड़की भी उसको एक बार देखेगी, उसको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे अगर हैंड राइटिंग अच्छी है, देखने में आप साफ सुथरे हो। अच्छा दिखने का मतलब ये नहीं है कि सर आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। अच्छा दिखने का मतलब ये है कि व्हेन आई एम सीइंग समथिंग इट शुड बी वेरी क्लीन, इट शुड बी वेरी मच विजिबल, इट शुड बी लेजिबल। क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछा, आपने आंसर मैडम किसी और तरीके से लिख दिया, ये किसी को भी नहीं पता कि एक्चुअल में आंसर लिखना कैसे है और आंसर होता क्या है। जितनी भी बातें आप YouTube पे सुनोगे या जो मैं आपको बताऊंगा, मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सब सेम है। एक्चुअल में किसी ने भी पेपर देखा नहीं है कि जब हम लिख के आते हैं एग्ज़ाम में और कितने मार्क्स मिलते हैं, वो किसी ने देखा नहीं है। सब स्पेकुलेटिव है। स्पेकुलेशन किसके बेस पे है? सर मैंने एक बार मेंस लिखा तो मेरे इतने मार्क्स आए, नेक्स्ट टाइम मैंने कुछ चेंज किया तो ज़्यादा मार्क्स आए, देन आई गॉट टू नो दैट दिस इज़ द बेटर वे। फिर मैंने देखा कि ये बंदा, इसकी सिलेक्शन हो गई है, ये पिछले 3 महीने से आंसर लिख रहा था, मैं ही चेक कर रहा था, ये आंसर इसने ऐसे लिखे हैं, तो दिस इज अ बेटर वे। क्वेश्चन 10 मार्कर जो होता है जर्नली 3 पार्ट्स में आता है। जर्नली बात कर रहे हैं, 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है मैडम, ABCD इज द टॉपिक, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द इंपैक्ट्स, व्हाट आर द सॉल्यूशंस। सिंपल आसान क्वेश्चन है। आजकल यूपीएससी क्या कर रही है, क्वेश्चन देने से पहले आपको एक डायरेक्टिव स्टेटमेंट देती है। यूपीएससी आपको एक डायरेक्टिव स्टेटमेंट देती है, एक 2-3 लाइंस की एक लंबी सी कहानी लिखी होगी, उसके बाद लिखा जाएगा फॉर एग्जाम्पल सर, कंसिडरिंग द इंक्रीज इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन इंडिया, दिस मच परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज लैंडिंग अप इन द पॉवर्टी, फुल स्टॉप। इन दिस लाइट कमेंट ऑन द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत। क्वेश्चन है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत। पहले वाली स्टोरी आपको ये बताया गया कि मैडम इससे प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, वो तो उसने पहले लिख दिया कि हेल्थ इश्यूज की वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से लोग गरीबी में ज़्यादा जा रहे हैं। यही तो 2 पॉइंट हमें आते थे आंसर में लिखने के लिए, वो तो एग्जामिनर ने पहले लिख के दे दिए। तो हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन को डिवाइड करना है मैडम। 1 इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सर, एक इन रशिया मैडम, जब भी आंसर लिखने बैठोगे, चाहे शाम को लिखने बैठोगे, आंसर लिखा ही नहीं जाएगा। सबसे पहले तो हमें डायरेक्टिव स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट। उसके बाद जो नॉर्मल हम इंट्रो लिखते हैं, सर एक वर्ड याद रखो, एनोड, कैथोड एनोड वाला एनोड याद रखो। सर बताओ जी किसकी इंट्रोडक्शन चाहिए? हाँ जी, इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी, व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ वी आर गोइंग टू मेक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मैडम, दिस इज द क्वेश्चन। फाइन, हाँ जी, हाँ जी, डेवलप कंट्री, डेवलप्ड कंट्री मैडम। इज क्वेश्चन इज, आप मेरे को रेक्टिफाई कर देना अगर क्वेश्चन, इंडिया वांट्स टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री और इंडिया वांट्स टू बिकम अ जगत गुरु बाय 2047। फाइन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी कंसिस्टेंट और इंटरमीडिएट और वेरी कंसिस्टेंट रोल इन दिस इज द क्वेश्चन। कमेंट सबसे पहले लिखनी है सर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में एक वर्ड याद रखना है मैडम, एनोड। ए इज फॉर अथॉरिटी, अथॉरिटी, कंट्री द इंडिया। नेचर कौन सी है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है हमारे पास। क्या चल रहा है? इकोनॉमी की नेचर कौन सी है? व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो मैडम ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, इसका आंसर चाहिए। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स? कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने पड़ेंगे? हाँ जी मैडम, एक ही बता दो बस। हाँ जी, एक। मैडम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है
तो सबसे पहले आपको अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड अचीव करना पड़ेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए हमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए आपको उनको क्या देना पड़ेगा? केशव। दूर जाना ही नहीं है। अब स्किल्स कौन से देने हैं वो नॉलेज अलग है। अगर कोई सर स्विंग मशीन चला रहा है उसके स्किल्स अलग हैं, नॉलेज उसको होनी चाहिए मैडम स्विंग मशीन कैसे चलती है। उसको ये एजुकेशन होनी चाहिए कि सर अगर आपको शर्ट बनानी है तो शर्ट का 42 का साइज़ इंडिया का ये है, और अगर आप इंडिया में जाओगे एक लोकल ब्रांड पे वहाँ पे 42 कुछ और है, दूसरी शॉप पे जाओगे 42 कुछ और है। स्टैंडर्डाइजेशन हमारे पास नहीं है। जब तक हम स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करेंगे स्किल की ग्रोथ नहीं होगी। स्किल जब हम देंगे एजुकेशन और नॉलेज के साथ और क्वालिटी क्लोथ यूज़ करेंगे तो वैल्यू सिस्टम आएगा। एटीट्यूड है इंसान के पास कि हाँ यार इसने शर्ट बोली थी सिंगल पॉकेट में डबल पॉकेट बनाता हूँ, इसने बोला था बटन यहाँ पे लगाने में यहाँ पे लगाता हूँ, ये मेरी इनोवेटिवनेस है, मेरे पास पोटेंशियल है चीज़ों को बदलने का। ये हर सेक्टर में अप्लाई होगा। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए मैडम एक अथॉरिटी को याद रखना है, नेचर को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स को याद रखना है, डेट ऑफ अडॉप्शन को याद रखना है, ये स्कीम कब स्टार्ट की थी, ऑन दिस डेट वी लेड द फाउंडेशन ऑफ सो एंड सो थिंग्स, इट्स इफेक्टिवनेस, कितना हमने अचीव कर लिया। इन्हीं में से 2-3 वर्ड पिक करोगे आपकी इंट्रोडक्शन बन जाएगी। पिरामिल क्या है सर? अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर कौन सी है हमारी? क्या क्या है प्रेमल में? सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, नेचर है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी अचीव करनी है। व्हाट इज जस्टिस? क्या होती है जस्टिस? हाँ जी मैडम, जस्टिस। हाँ जी, एनीवन फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड? जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस सर? मैडम जस्टिस इज एन आइडियल। ट्रू जस्टिस कभी नहीं आएगी सोसाइटी में। डिक्लाइन इन इनजस्टिस इक्विवेलेंट टू जस्टिस। जस्टिस चाहिए तो इनजस्टिस को सोसाइटी में कम करना पड़ेगा। क्राइम लेस सोसाइटी में मैडम क्राइम रेट को कम करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सोसाइटी क्राइम लेस हो जाएगी। ट्रू इक्वालिटी कभी नहीं आएगी, इनइक्वालिटी को कम करना है। इनइक्वालिटी को कम करोगे ऑटोमेटिकली यू आर हेडिंग टुवर्ड्स इक्वालिटी। ये नेचर है मैडम। प्रीएम्बल में ये जितने वर्ड लिख दिए इन सब की ये नेचर है। इफेक्टिवनेस, वहाँ पे आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ करने हैं। इंट्रोडक्शन आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। आर्ट एंड कल्चर भी ऐसे ही चलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसी ही चलेगी। क्वांटम कंप्यूटिंग पे क्वेश्चन आ गया, यहीं से डेफिनेशन बनेगी। ब्लॉकचेन पे आ गया, यहीं से डेफिनेशन बनेगी। फाइन, दिस इज द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन। मैडम क्वेश्चन का जो भी पार्ट है Madam, try to finish the introduction in 30-40 words, though this information is not very much relevant because इसमें कुछ भी मैं नया नहीं बता रहा हूँ। आपने बहुत जगह पहले ये चीज़ें सुनी होगी, तो 1 मिनट में इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि आंसर कैसा दिखना चाहिए। फर्स्ट पार्ट शुड बी दी इंट्रोडक्शन, देन हेडिंग शुड बी देयर। ट्राई टू पिक द हेडिंग फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। हाँ जी, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट, तो मैडम राइट इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट। फाइन, क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है हेडिंग वही होनी चाहिए। हेडिंग आपको खुद से बना के लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर को समझने में टाइम लगेगा कि आप क्या कहना चाहते हो। सर आपने 4 चीजें मांगी, चाय मांगी, समोसा मांगा, ये चाय की प्लेट है, ये समोसे की प्लेट है। ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब समोसे के अंदर आलू है या नहीं है वो बात की बात है, पर पहले हेडिंग में यहाँ पे लिख दो समोसा इधर ही है, समोसा जैसा दिखना चाहिए, वो क्वेश्चन से ही पिक कर लेना है। उसके नीचे लिखो मैडम समोसे के अंदर क्या क्या डाला है। चाय के बाद टी की हेडिंग देके उसके नीचे लिखो इसमें क्या क्या डाला है। एग्जामिनर ने 2 चीज़ें मांगी थी, समोसा और चाय। हेडिंग शुड बी पिक्ड फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। फाइन, देन अगर क्वेश्चन सर क्लोज्ड है, क्लोज से क्या मतलब है? व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड इंपैक्ट्स ऑफ द क्लाउड बर्स्ट, फुल स्टॉप। मेजर्स नहीं पूछे। ट्राई टू गिव अ वे फॉरवर्ड, ट्राई टू गिव अ वे फॉरवर्ड। एग्जामिनर ने मैडम एक्सप्लिसिटली आपसे वे फॉरवर्ड डिमांड नहीं किया है। क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड इंपैक्ट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट। फाइन, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड क्लाउड बर्स्ट। अगेन यू कैन डिवाइड दिस कंटेंट इनटू 2 पार्ट्स, रीजंस, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज और नेचुरल कॉजेज। इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। क्लासिफिकेशन करनी है, वुमेन को क्लासीफाई करना है, एजुकेटेड वुमेन, अनएजुकेटेड वुमेन, रूरल वुमेन, अर्बन वुमेन, ABCD। मैडम मल्टीपल क्लासिफिकेशंस हैं।
दीज आर जस्ट स्केलेटन्स. जितना ज़्यादा स्केलेटन बनाओगे आपका आंसर उतना ज़्यादा एनरिच्ड होता जाएगा. ट्राई टू पिक हेडिंग्स फ्रॉम द क्वेश्चन. ट्राई टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. एवरी हेडिंग शुड बी हैविंग 2-3 points and try to substantiate at least 50% points of your answer. Not all. If you are going to do all, wonderful. If you are not able to do, try to substantiate maximum. 50% को substantiate करने की कोशिश करो. सर एजुकेशन से रिलेटेड 10 फैक्ट याद कर लो. कोई भी क्वेश्चन आ गया मैडम एजुकेशन से रिलेटेड, क्वेश्चन वहाँ पे एड्रेस हो जाएगा. मैडम ट्राई टू कोट 10 to 12 points in 10 marker. ट्राई टू कोट 15 to 18 points in 15 marker. इससे क्या होगा मैडम, आपको एक ग्रॉस आइडिया रहेगा कि इतना आंसर लिखने में इतना टाइम जाता है और इतना मेरा कंटेंट आ जाता है और इतने मुझे मार्क्स मिल रहे हैं. ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन यूपीएससी शीट, नॉट ऑन नॉर्मल A4 शीट. उससे क्या होगा मैडम, आप प्रैक्टिस कुछ और करोगे और एक्चुअल एग्जाम में जब आपके पास स्पेस कम होगी तो कंटेंट आपके पास ज़्यादा होगा, वर्ड लिमिट को आप मैनेज नहीं कर पाओगे. दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू शुड नो अबाउट आंसर राइटिंग. Last and foremost, don't evaluate yourself. Don't evaluate yourself. Fine, उसके लिए सोसाइटी है, लोग हैं, यूपीएससी है, एसएससी है, जीपीएससी है, लोग आपको इवेल्युएट करेंगे. We are in a practice phase till your selection. Fine, and you will be in a rigorous practice phase after your selection. प्रैक्टिस हमेशा चलती रहेगी. खुद को इवेल्युएट मत कीजिए. आपको सर प्रीलिम्स का पेपर मिल गया, उसमें 100 क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस है. अगर आपके 100 के 100 क्वेश्चन गलत हैं सर, इट मीन्स इन डिस्कशन यू आर गोइंग टू लर्न 100 न्यू पॉइंट्स. अगर 100 के 100 आते थे तो 2 घंटे वेस्ट हो गए. हम आंसर लिख रहे हैं, कभी भी दी बेस्ट आंसर नहीं आएगा. परफेक्शन मैडम जिंदगी में कभी नहीं आएगी. यूपीएससी इज नॉट गेम ऑफ परफेक्शन. यू हैव टू बी स्लाइटली बेटर देन अदर्स. दिस स्लाइटली बेटर इज फार अवे फ्रॉम परफेक्शन. फार अवे फ्रॉम परफेक्शन. 90 मार्क्स 85 मार्क्स पे प्री की कट ऑफ जाती है, ओपन कैटेगरी की बात है. कहाँ पे परफेक्शन है? 50% पे परफेक्शन मान लो तो 50% से कम मार्क्स चाहिए प्री क्वालिफाई करने के लिए. फार अवे फ्रॉम परफेक्शन, यू हैव टू बी स्लाइटली बेटर देन अदर्स. फाइन, ये पर्सनल एजेंडा बना के चलना है. नंबर 1. नंबर 2, प्रेपरेशन हमेशा हम करते हैं सर P2I, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ऐसे ही पढ़ाया जाता है हर जगह. आपको पहला प्रॉमिस खुद से ये करना है, इवेल्युएट नहीं करना है खुद को जब तक प्रिपेयर कर रहे हो. कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर करते जाना है. दूसरा, आई पे सबसे पहले फोकस करना है मैडम, दैट इज इंटरव्यू. एक्चुअल में इंटरव्यू नहीं होती है यूपीएससी के एग्जाम में. क्या होता है? पर्सनैलिटी टेस्ट. मैडम आपने खुद से कमिट कर दिया कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगी और आप उठ नहीं रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी पहले आपको डेवलप करनी है. यू शुड गेट दैट डिसिप्लिन फॉर योर सेल्फ. धोखा खाया कभी जिंदगी में? कभी तो धोखा हुआ होगा कुछ. सबने कभी ना कभी मैडम वेज खाया हो, नॉन वेज खाया हो, बट धोखा तो खाया ही होता है. ये तो कॉमन चीज़ है, सबको कभी ना कभी किसी ना किसी से मिलता ही है. सबसे ज़्यादा धोखा हम खुद को देते हैं. आपको पता है सुबह जल्दी उठोगे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. आपको पता है ज़्यादा पढ़ोगे तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे. आपको पता है लाइब्रेरी टाइम पे जाएंगे, डिसिप्लिन ज़िंदगी जिएंगे तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है. क्या हम करते हैं? नहीं करते. हम अपने आप को सबसे ज़्यादा खुद ही धोखा देते हैं और पूरी ज़िंदगी वो इंसान ढूंढते रहे जिसको ब्लेम करना है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ. खुद को इवेल्युएट नहीं करना है. अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पहले करनी है, विच इज़ A2I. जिस दिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी मैडम, डिसिप्लिन आएगा, डेडिकेशन आएगी, डिवोशन आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी, ऑटोमेटिकली P&M विल कम. प्रीलिम्स एंड मेंस रिजल्ट विल कम, स्टार्स विल बी इन योर फेवर. फाइन, किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो. एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की है, ऐसे आई विल कंसाइज माई, आई विल डिस्कस द ऐसे पार्ट एट सम अदर पॉइंट, क्योंकि सर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया. और पूरा GS 1 2 3 4 ट्राई टू मेक डिफरेंट स्केलेटन्स. अगर कहीं पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है स्केलेटन की तो आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल. जो भी इशू है विल ट्राई टू सॉर्ट आउट. फाइन, मैडम विल कंटिन्यू विद GPSC. इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक तो વિલ મીટ આફ્ટર 10-15 મિનિટ્સ. સરે તો ખાસ કરીને યુપીએસસીને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણી બધી વાતો કરી છે.
હવે જે લોકો જીપીએસસી મેઇન્સમાં અને જે અત્યારે મેડમ જે સફળ થયા છે 2019ની ભરતીમાં, તો દ્રષ્ટિ મેડમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આગળનું સેશન કન્ટિન્યુ કરશે. થોડું ગળું ખરાબ છે એટલે આઈ કાન્ટ ટોક લાઉડર. સરે જેમ કીધું એ કન્ટેન્ટ કે કેવી રીતે આન્સર લખવો, કન્ટેન્ટમાં શું લખવું, દેટ વી હેવ ઓલરેડી લિસન ટુ હિમ, રાઈટ. હવે મેઇન મને એટલું કહો કે તમારામાંથી જીપીએસસી કેટર કરવાવાળા કેટલા છે, મતલબ પ્રોપર કે હમણાં જીપીએસસીની મેન્સ હોય કોઈની, આ રિક્રુટમેન્ટ 1-1.5 મહિના પછી જેની મેન્સ છે, કોઈ છે જેની જીપીએસસી મેન્સ હોય હમણાં? રાઈટ. ઓકે ગ્રેટ. મેં તૈયારી શરૂ કરેલી 2016 એન્ડમાં. 18માં મેં એકવાર જીપીએસસી લખી છે, મારા 393 માર્ક્સ હતા અને આઈ કુડન્ટ ગેટ થ્રુ ઇટ. અને 2019માં આઈ ગેવ જીપીએસસી ઇન વિચ આઈ ગોટ 432 માર્ક્સ, રાઈટ. તો જેમ સરે કીધું એમ કોઈ એવું રોકેટ સાયન્સ નથી કે હું કહી દઈશ કે કઈ બુક વાંચશો તો યુલ બી ઇન એન્ડ યુ વોન્ટ બી ઇન, એવું કાંઈ જ નથી. આઈ ફીલ સૌથી વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે 3 કલાકમાં તમે કેવું પરફોર્મ કરો છો. કન્ટેન્ટની વાત છે, એક્ઝામ તમે લોકો તૈયારી કરતા જ હશો, એટલે ક્લાસ 2-1-2ની કરતા હોય, યુપીએસસીની કરતા હોય, ક્લાસ 3ની કરતા હોય. કન્ટેન્ટ માર્કેટમાં એ જ અવેલેબલ છે. ઇન્ડિયન પોલિટી માટે સેમ વસ્તુ છે, ઇકોનોમી માટે સેમ વસ્તુ છે. કન્ટેન્ટ આવડતું હશે, પણ હમણાં જીપીએસસીની ડિમાન્ડ દાસા સાહેબ હતા ત્યારે કંઈક અલગ હતી, હવે કંઈક અલગ છે. તો ફરક એટલો જ પડે છે કે 3 કલાકમાં આપણે કેવું પરફોર્મ કરીએ છીએ. આપણું બેસ્ટ એ 3 કલાકમાં આપવાનું હોય છે. હવે કોઈ બુક્સ કઈ વાંચવાની કે શું કરવાનું, આઈ વોન્ટ ગો ઇન ટુ દેટ. ફર્સ્ટ થિંગ, આપણે એના સિલેબસ છે જે આપણો જીપીએસસી મેઇન્સનો, એના ટોપિક વાઇઝ આપણે ડિસ્કસ કરશું કે મારા 393 માર્ક્સ હતા ત્યાંથી 432, સારા એવા માર્કનો જમ્પ આવ્યો. કારણ એક જ કે આપણે કન્ટેન્ટ હોવા છતાં પેન ઉપડતી નથી. ઘણીવાર દિમાગમાં ઘણી બધી વસ્તુ છે, એક લિમિટેડ પેજ છે આપણી પાસે, પણ આપણે લખી નથી શકતા. કારણ એ છે કે ઘણું બધું આવડે છે અથવા તો કાંઈ જ નથી આવડતું. ફેક્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચનની ઉપર એનાલિસિસ કે ક્રિટિકલી એનાલાઇઝ કે આના વિશે તમે ટોપિક વાઇઝ લખો, પોઝિટિવ્સ નેગેટિવ્સ લખો અને કન્ક્લુઝન આપો. તો આવા કેસીસમાં આપણે સૌથી વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે આપણો સિલેબસ, સરે પણ વાત કરી, સૌથી પહેલી વસ્તુ કે સિલેબસના દરેક ટોપિકથી આપણે થોરડ થઈ જઈએ સૌથી પહેલાં. અને જ્યારે જીપીએસસી મેન્સ આવતી હોય, જ્યારે મેં એટલા માટે 18ની વાત કરી કે જ્યારે 18માં મારી મેન્સ હતી તો આઈ વોઝ નોટ પ્રિપેરિંગ ફોર જીપીએસસી એટ ઓલ. આઈ વોઝ પ્રિપેરિંગ ફોર યુપીએસસી અને અનાયાસે somebody told me કે જીપીએસસી આવે છે અને જસ્ટ ગીવ પ્રિલિમ્સ. આઈ ગેવ પ્રિલિમ્સ એન્ડ આઈ ગોટ થ્રુ ઇટ. પછી મેન્સ આવી ગઈ, 1-1.5 મહિનાનો ગેપ છે મારી પાસે એન્ડ આઈ હેવ નો આઈડિયા હાઉ ટુ રાઇટ ધી આન્સર્સ. ઓકે, આવા કેસીસમાં પણ યુ કેન ક્વોલિફાય, યુ કેન ગેટ ગુડ માર્ક્સ. એટલે હમણાં હવે બધા પાસે 1-1.5 મહિનો છે, તો આન્સર રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ આપણે કરીએ. તો શરૂઆત ક્યાંથી કરવી? તો સૌથી પહેલાં મેં સિલેબસ પકડ્યો. હું એટલી સ્ટ્રેટેજી એ કહું છું કે જે મેં પોતે ફોલો કરી છે, બરાબર. ઇટ મે વર્ક ફોર સમબડી અને ના પણ વર્ક કરે, રાઈટ. પણ જીપીએસસીનો જે સિલેબસ છે, દરેક સિલેબસનો ટોપિક છે, એની એક પ્રસ્તાવના હોય, એનું એક કન્ક્લુઝન હોય. મને નથી ખબર કે એક્ઝામના મેન્સના ક્વેશ્ચનમાં ફેક્ચ્યુઅલ મને ક્વેશ્ચન પૂછશે કે એનાલિટિકલ ક્વેશ્ચન પૂછશે કે યુપીએસસી લાઇનનો પૂછશે અથવા તો એકદમ જીપીએસસી કોર ક્લાસ 3 લેવલમાં જે એકદમ ફેક્ચ્યુઅલ સવાલ પૂછે છે એ પૂછશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે દરેક ટોપિકની એક પ્રસ્તાવના રેડી હોવી જ જોઈએ, આત્મસાત થઈ જવી જોઈએ. હિસ્ટ્રીના જેટલા ટોપિક્સ છે એક પ્રસ્તાવના. ઇન કેસ ધીસ વિલ વર્ક જ્યારે તમને કોઈ આન્સર નથી આવડતો, ક્વેશ્ચન જોઈને તમે ગભરાઈ ગયા કે હવે નથી જ આવડતું, આમાં શું જ લખીશ, દેન ધીસ વિલ હેલ્પ યુ. આવડે છે તો પણ તમારી પ્રસ્તાવના ફટાફટ લખાઈ જાય. કન્ટેન્ટ વિલ બી ડિફરન્ટ ફ્રોમ ક્વેશ્ચન ટુ ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચનની જે ડિમાન્ડ હશે એના હિસાબથી આપણે કન્ટેન્ટ એમાં એડ કરીશું. પણ પ્રસ્તાવના અને કન્ક્લુઝન ગવર્મેન્ટ વિશે કંઈક ઓપ્ટિમિસ્ટિક, કોઈ પણ ક્વેશ્ચન છે એમાં ઓપ્ટિમિઝમ. બિંગ એન ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ, ઇટ હેઝ બીન લાઈક 5 years આઈ એમ ઇન ટુ ધીસ પોલિસી મેકિંગ, રાઈટ. આઈ એમ વર્કિંગ એઝ સેક્શન ઓફિસર, તો એમાં મોસ્ટલી અમારું જે કામ હોય છે એ પોલિસી મેકિંગનું હોય છે. પોલિસી મેકિંગમાં આપણને ઘણીવાર એવું થાય, જ્યારે તૈયારી કરતા હોય એટલે આપણને થાય કે હિસ્ટ્રી કેમ ભણવાનું હશે, જોગ્રાફીને મારે શું લેવા દેવા, હવે ભૂગોળમાં અંદર કેટલી ઊંડાઈ છે ધરતીને, ક્યાં કોણ રહે છે, મારે શું લેવા દેવા છે. એટલા માટે જ્યારે તમે પોલિસી મેક કરતા હોય, હવે હું તમને મોટું પહેલાં ગવર્મેન્ટનું સ્ટ્રક્ચર સમજાવી દઉં. સરે વાત કરીએ બિફોર યુપીએસસી કે જીપીએસસી, તૈયારી ફેઝમાં વોટ આર ધ થિંગ્સ ટુ બી નોન. તૈયારી પછી કે આપણે તૈયારી કરતાં ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ એવા આવશે કે આ કેમ કરવાનું, આ કેમ વાંચીએ છીએ, ઘણી બધી વાર એવું થાય, રાઈટ.
એના માટે હું કહી દઉં કે ગવર્મેન્ટ વર્ક કરે સૌથી પહેલાં આપણા રાજ્યપાલ છે. આપણે કોઈ પણ ઓર્ડર બહાર પડતો હશે, તમે નીચે વાંચતા હશો બાય ધ નેમ ઓફ ગવર્નર, રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, અને પછી નીચે જે પણ ઓફિસર હોય તેની સાઇન હોય. સચિવાલયનું કામ છે એ કરે પોલિસી મેકિંગ. કોઈ પણ પોલિસી, કોઈ પણ યોજના બહાર પાડવાની છે કે કોઈના બેટરમેન્ટ માટેની યોજના છે, કંઈ પણ યોજના છે, એનું પોલિસી મેકિંગનું કામ થાય સચિવાલયમાં. અને જે ફિલ્ડ ઓફિસીસ તમે જુઓ છો કે પોલીસિંગ થઈ ગયું, દેટ કમ્સ અંડર ધી હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ. શ્રમ અધિકારી છે આપણી પાસે, શિક્ષણ વિભાગ છે તો શિક્ષકો છે, એ લોકોનું કામ છે. જે ફિલ્ડ ઓફિસીસ છે એમનું કામ છે જે પોલિસી બની છે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનનું પાર્ટ એ લોકો જોતા હોય છે, રાઈટ. એટલે જ્યારે આપણે પોલિસી બનાવતા હોઈએ, જેમ મેં કીધું, આપણને થાય કે હિસ્ટ્રી કેમ વાંચવાનું, તો દરેક એક યોજના બનાવતા વખતે કે એક યોજનાનું ફોર્મ કેવું હશે, એની અંદર શું શું ફિલ્ડ્સ આપણે એડ કરીશું, કોણ કોણ બેનિફિશિયરી હશે, બેનિફિશિયરીની પણ ડિટેલ્સ, કે એની પાસેથી કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ માંગશું. હવે આપણે એવું કહી દઈએ કે આ પોલિસી હું બનાવું છું અને એની અંદર આના પાસપોર્ટ માંગીશું. નોટ એવરીબડી વિલ બી હેવિંગ ધ પાસપોર્ટ, રાઈટ. તો આપણે આધાર કાર્ડ માંગીએ, તો આધાર કાર્ડનો કન્સેપ્ટ કે એની પાછળનું શું પણ લોજિક છે. તો જ્યારે પોલિસી બનાવતા હોઈએ ત્યારે આ બધી વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખવી પડે કે હિસ્ટોરિકલ બેકગ્રાઉન્ડ શું છે જે તે લાભાર્થીનું, જોગ્રાફીના બેઝિસ પર એ લોકો ઇકોનોમિકલી કેટલા એમ્પાવર્ડ છે એ જોવું પડે આપણે. જોગ્રાફી, ક્યાં પર્ટિક્યુલર રિજનમાં રહે છે, એને શેલ્ટરની જરૂર છે તો એને શેલ્ટર પ્રોવાઈડ કરીશું, કે એને ઘરની જરૂર છે એને ઘર પ્રોવાઈડ કરીશું. એટલે દરેકે દરેક ફેક્ટર્સ જે આપણે વાંચીએ છીએ. અને એથિકલ તો યુ ઓલ નો, કરપ્ટ પ્રેક્ટિસીસ થઈ ગઈ કે તમારું એથિકલ ડાયલેમા થઈ ગયો, કે સરે જેમ વાત કરી કે તમને એક રિપોર્ટ આવે છે તમારી પાસે અને તમને કહેવામાં આવે કે આ 4 વાગે આપવાનો હતો અને 3:30 આપવાનો હતો અને 4 વાગી ગયા છે અને તમારી પાસે આટલું બધું મટીરિયલ છે. યોર બોસ વિલ બી વોન્ટિંગ કે તમે આને કન્સાઇઝ કરીને આપો. યોર બોસ વિલ બી સેઇંગ કે લો આને પકડો અને આને 2 લીટીમાં લખીને આપો કે 5 પત્તામાં લખીને આપો. દેટ ઇઝ અપ ટુ યુ. ત્યારે પિક્ચરમાં આવે છે એથિક્સ, રાઈટ. તો આ જે મેં વાત કરીએ ઓવરઓલ સ્ફિયરમાં ઘણા બધા સબ્જેક્ટ્સ આપણે ભણીએ છીએ, તો એની પાછળનું રીઝન આ છે કે ડે ટુ ડે બેઝિસમાં એઝ અ સિવિલ સર્વન્ટ દરેકે દરેક વસ્તુ આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક કામમાં લાગવાની જ છે. સ્કૂલિંગ લેવલથી ભણેલું કે યુપીએસસીમાં તૈયારી કરેલું દરેક વસ્તુ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને અફેક્ટ કરતું હશે, રાઈટ, આપણા એઝ અ સિવિલ સર્વન્ટની લાઈફમાં. હવે હું સિલેબસ પર આવી જાઉં. પ્રિલિમ્સ હમણાં થઈ ગઈ છે, મેન્સ આવે છે. જે ઓનલાઈન મિત્રો જોઈ રહ્યા છે એમને પણ ખ્યાલ હશે કે ધીસ વિલ બી હેલ્પફુલ ફોર ધેમ, ઓકે, બિકોઝ ધીસ વોઝ હેલ્પફુલ ફોર મી. તો જીપીએસસીના જે સૌથી પહેલું પેપર છે, નો બડી ટેલ્સ યુ, જ્યારે આઈ વોઝ ઓલ્સો પ્રિપેરિંગ તો બધા આની એક જ વસ્તુ હોય કે GS 1 2 3, GS 1 2 3. કોઈ કહેતું નથી કે કમ્પલસરી ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે બંનેના માર્ક્સ કાઉન્ટ થાય છે. યુપીએસસીમાં એ સિર્ફ પાસિંગ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પહેલાંમાં કાઉન્ટ થાય છે. તો જેની પણ મેન્સ છે એ પહેલાં જીપીએસસીના જે કમ્પલસરી પેપર્સ છે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ, એમાં સારો સ્કોર થઈ જાય. એસે ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ 3 પેપર પર પણ એટલું જ ધ્યાન આપવું, કેમ કે GS એક એવો સબ્જેક્ટ છે જેમાં બધાને એવરેજ માર્ક્સ તો આવી જ જશે. કોઈના 70-80ની રેન્જમાં એવરેજ માર્ક્સ તો તમે થોડું વાંચેલું છે તો તમે એવરેજ માર્ક્સ લાવી શકશો ત્યાંથી, બરાબર. પણ કમ્પલસરીના પેપર્સ છે થોડા મિસ થઈ જતા હોય છે. તો હું સ્ટાર્ટ કરું સૌથી પહેલાં ગુજરાતી કમ્પલસરીનું જે પેપર છે, રાઈટ. એની અંદર 10-10 માર્ક્સના આપણી પાસે ઘણા બધા ક્વેશ્ચન છે. સંક્ષેપીકરણ છે કે પછી ગદ્ય વિચાર છે કે પછી પેલી કાવ્ય પંક્તિ છે, એના ઉપરથી લખવાનું છે. એવા 10-10 માર્કર વધુ છે. ઇંગ્લિશમાં 10-10 માર્કર નથી પણ 15 માર્કર્સ છે. એટલે ઇંગ્લિશનું પેપર કમ્પેરેટિવલી ટાઈમમાં પતી જાય છે. ગુજરાતીનું પેપર ઇટ ટેક્સ ટાઈમ, તમે એન્ડ મોમેન્ટ સુધી તમે લખતા હો છો, રાઈટ. તો ગુજરાતીનું જે પેપર છે એની અંદર 10-10 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ કે આપણે ટાઈમ પર વર્ક કરીશું. ટાઈમ ડિવાઈડ કરી દેવાનો, 10-10 માર્ક્સના છે. તો આ ક્વેશ્ચન કે હું કેટલો ટાઈમ લઈશ. હવે ગ્રામર વસ્તુ એવી છે કે એમાં કંઈ પણ પૂછી શકે છે આ લોકો. એટલે ગ્રામર તમે જે વાંચીને જશો, અગર તમે સ્કૂલિંગ લેવલમાં સારું એવું ભણ્યા છો તો એ તમને હેલ્પ કરશે ગ્રામરવાળા પોર્શનમાં, રાઈટ. જે 20 માર્ક્સનું ગ્રામર છે એની અંદર. પણ જો તમે ગ્રામર સાથે થોરર નથી તો આઈ વિલ સજેસ્ટ કે ગ્રામર પોર્શન યુ કેન લીવ ફોર નાવ. હમણાં, કેમ કે 1.5 મહિના પછી જેની મેન્સ છે એની વાત કરું છું, રાઈટ. અને જે 10-10 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન્સ છે એમાં ટાઈમ ડિવાઈડ કરી દેવાનો. ટાઈમ સૌથી વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ગુજરાતીના પેપરમાં. ઇંગ્લિશના પેપરમાં ટાઈમ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ સ્ટીલ યુ કેન ગેટ ગુડ માર્ક્સ, કેમ કે કમ્પેરેટિવલી એનું ગ્રામર અને એ બધી વસ્તુ છે થોડું ઇઝી આવે છે. હવે રહી વાત એસેની, તો એસેમાં આપણને બી ઘણીવાર એવું થાય કે પેન શરૂ નથી થતી કે કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવું એસેનું પેપર. તો એસેમાં વોટ આઈ ડીડ કે જે આપણા જીપીએસસીના પેપર્સ છે GS 1 2 3, એનો જે ફ્લો ચાલે છે, સૌથી પહેલાં હિસ્ટ્રી આવે છે, પછી આર્ટ એન્ડ કલ્ચર, પછી તમારી પાસે આવે પોલિટી, ઇન્ડિયન એડમિનિસ્ટ્રેશન, એથિકલ,
બરાબર, એથિકલ પર્સપેક્ટિવ, અને સૌથી લાસ્ટમાં આવે ઇકોનોમી અને સાયન્સ એન્ડ ટેક એન્ડ દેન કરંટ અફેર્સ. તો આ ફ્લોમાં જ્યારે કાંઈ જ નથી ખબર પડતી ત્યારની વાત કરું છું. કોઈ પણ ટોપિક છે એસેનો, એમાં આ ફ્લોમાં તમારે જવાનું. સૌથી પહેલાં કોઈ પણ ટોપિકનો હિસ્ટોરિકલ પર્સપેક્ટિવ, એના 1-2 પેરેગ્રાફ. હંમેશા એક જીપીએસસીના પેપરની વાત કરું, હંમેશા એક પેજ ઉપર તમે જે લખો, એક પેજ પર એક કોટ તો લખવાનો જ. આવડે કે ના આવડે, રટી લેવાનો. ડેમોક્રેસી છે, વુમન એમ્પાવરમેન્ટ છે, પોલિટી છે, એક સબ્જેક્ટ છે, એ દરેકના એક કોટ આપણે રટી જ લેવાના. કે ગમે તે થાય એસેમાં તો લખવા જ પડશે. જેટલા વધુ કોટ્સ લખશો, સરે કીધું એમ, જેટલું બ્યુટિફિકેશન હશે પેપરમાં એટલા માર્ક્સ મળશે. આઈ એમ નોટ ડિલાઇંગ ધ ફેક્ટ કે આમાં કન્ટેન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે નથી. કન્ટેન્ટ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ આ બચાવ પક્ષની કાર્યવાહી માટે હું કહી રહી છું કે જ્યારે કાંઈ જ નથી આવડતું ત્યારની વાત છે. જેને આવડે છે એને આ સેશનની પણ જરૂર નથી, એ લખી જ શકવાના છે. પણ એવું થતું નથી હોતું, કેમ કે એ પણ આપણા બાપ બેઠા છે, એ લોકો બી જ્યારે પેપર બનાવે છે તો એમને કંઈ ખબર હશે કે આ તો બધાને આવડશે, આવું નથી પૂછવું, કંઈક બીજું પૂછીએ, રાઈટ. કોર્સ આપણે એમાં એડ કરશું એસેમાં. હિસ્ટ્રીથી લઈને હિસ્ટોરિકલ પર્સપેક્ટિવ, આર્ટ એન્ડ કલ્ચર, એ મેં ફ્લો કીધો, એક ફ્લો, એટલે તમારા દિમાગમાં રહે કે ક્યાંથી ક્યાં જાય છે, રાઈટ. કોડ સેટ કરીશું. પછી એસેમાં સૌથી વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું મેં કરેલું કે જે પીએમની મન કી બાત આવતી હતી, રાઈટ. એમાં એ હરેક મુદ્દો ઉઠાવતા, અને પીએમ સાહેબને બી આદત છે પેલા એબ્રિવેશન્સ બનાવવાની, IT+IT=IT, રાઈટ, એ રીતના. તો મન કી બાતમાં બી તમને ઘણું બધું મળી જશે કન્ટેન્ટ, કે જે થોડું યુનિક હશે અને જે બધા કોચિંગ મટીરિયલ્સમાં નહીં હોય. એટલે યુ વિલ બી ડિફરન્ટ ફ્રોમ અધર્સ. આપણી આખી ગેમ હોય છે, જેમ કે 2018માં મેં વાત કરી, મેં ઇન્ટરવ્યૂ આપેલું, મારું 5.5 માર્ક્સથી ફાઇનલ સિલેક્શન રહી ગયું. આ 5.5 માર્ક્સ અત્યારે અડધો માર્ક્સ ક્યાંક એક ક્વેશ્ચનમાં વધશે, તો એ ફાઇનલ લિસ્ટમાં તમને હેલ્પ કરશે. તમે બધા ટેલેન્ટેડ છો, 1-2 વર્ષથી વાંચતા હશો, એટલે બહુ જ સારા માર્ક્સ લાવી જ દેશો. પણ જે ફરક પડશે અડધો માર્ક્સ કે 1 કે 2 માર્ક્સનો ફરક પડશે, કે ક્યાંક ઇન્ટરવ્યૂ રહી ગયું અથવા તો ઇન્ટરવ્યૂ પછી ફાઇનલ સિલેક્શન રહી ગયું, રાઈટ. તો એસેનું આ થઈ ગયું કે દરેક ટોપિકમાં બને ત્યાં સુધી હવે એ લોકો સ્માર્ટ થઈ ગયા છે જીપીએસસી વાળા, કે બધા ફિલોસોફિકલ એસે બી પૂછવા લાગ્યા છે કે ગાંધીજીનો કોઈ કોટ અને એના ઉપર કંઈક લખો. હવે એક્ઝામિનર બની શકે એજેડ હોય તો એના થોટ્સ અલગ હોય, આપણે નવી જનરેશન છે, આપણા થોટ્સ અલગ હોય, તો બની શકે એના થોટ સાથે આપણે કોઇન્સાઇડ કરીને ના 100% આપી શકીએ, પણ સ્ટીલ વી હેવ ટુ રાઇટ. તો આપણે લખવાના તો છીએ જ, અને પેન અટકવી ના જોઈએ, દેટ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ. એટલા માટે કોટ્સની વાત થઈ ગઈ. કોર્સ આપણે દરેક ટોપિક પર એક કોટ રેડી કરી લઈશું. એ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે, બટ આઈ વિલ સજેસ્ટ કે જેમ ઓનલી આઈએસના હરેક એડિટોરિયલના શરૂઆતમાં સુમિત સર ક્યારેક શરૂ કરે છે એ સેશનમાં, કે શરૂઆતમાં એક કોટ ડિસ્કસ કરતા હોય છે. તો એવા એક કોટ્સનું મળી જાય તમને મટીરિયલ, અથવા તો તમે જાતે એડિટોરિયલ વાંચતા હશો તો તમે ક્યાંક નોંધ્યા હશે. એ કોટ્સ ડિફરન્ટ હશે, જે દુનિયા લખતી હશે. અબ્રાહમ લિંકમના કોટ બધા લખશે, તો તમે કેવી રીતે અલગ કંઈક કરશો. તો સુમિત રેવરી સરના કોટ્સ મને પર્સનલી ગમતા હતા, અને આજની તારીખમાં બી બહુ સારા કોટ્સ એ અવેલેબલ કરાવી દે છે. તો બરાબર, આપણે કોટ્સ લખશું. એસેનો ટોપિક પત્યો, અને આઈ બી લાઈક વેરી ક્વિક, કેમ કે આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ તમને બધાને વાંચવાનું હશે, 1-1.5 મહિના પછી મેન્સ છે એટલે. ઓકે, એસેનું થઈ ગયું. તો બને ત્યાં સુધી સાયન્ટિફિક ને એવા ટોપિક્સ હોય જે સાયન્સ રિલેટેડ હોય, ઇકોનોમી રિલેટેડ હોય, તેને પહેલો પ્રેફરન્સ આપવાનો, કેમ કે એ વધુ સ્કોરિંગ છે, કેમ કે તમારા જીએસ સાથે કમ્બાઇન્ડ છે, એટલા માટે યુ કેન ગેટ ગુડ માર્ક્સ ઇન ધોઝ ટાઈપ ઓફ એસેઝ, રાઈટ. અને ફિલોસોફિકલ એસેમાં કાંઈ ઓપ્શન નથી મળતો કે એ ઓપ્શનમાંથી એક પસંદ કરવો જ પડશે, તો દેન યુ હેવ નો ચોઇસ. એકાદો એસે તો એવી રીતે લખવો જ પડશે, રાઈટ. સો દેટ વિલ બી ડન લાઈક દેટ. અને GS1ની વાત રહી, જેમ મેં કીધું કે GSના પેપર્સ છે, દરેકમાં એક પ્રસ્તાવના, એક કન્ક્લુઝન. મારી પાસે કેમ કે 2018 મેન્સ વખતે ટાઈમ ઓછો હતો, તો આઈ ડીડ ધીસ પ્રેક્ટિસ કે દરેક સબ્જેક્ટના દરેક સિલેબસનો જે સબ્જેક્ટ છે એના ઉપર એક પેજ રેડી હતું. દરેકની પ્રસ્તાવના, દરેકનું એક પંચલાઇનવાળું કન્ક્લુઝન. ગવર્મેન્ટ સારું જ કરે છે, ગવર્મેન્ટ બધું જ બેસ્ટ કરે છે આપણા માટે. બસ, જે બી સવાલ પૂછ્યો, ડોન્ટ ગો અગેન્સ્ટ ધી ગવર્મેન્ટ. જ્યારે મારી સાથે એક ડીવાયસો હતા, પ્રિપેર કરતા હતા, એમણે મને એમના એસે લખ્યા અને મને મોકલી આપે કે તમે ચેક કરો. એમના એસે વાંચીને 2-5 મિનિટથી એવું થાય કે ટોટલી અગેન્સ્ટ ઓફ ધી ગવર્મેન્ટ, કે આટલો શું ગુસ્સો છે. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇશ્યુઝ આપણને દેખાય છે, પણ સરકાર બિંગ અ પાર્ટ ઓફ ગવર્મેન્ટ, આઈ કેન ટેલ, સરકાર ઘણું બધું કરતી હોય છે, ઘણું બધું. એ હવે નીચેવાળા સુધી, કે એની જે પ્રોપર જનતા છે એની સુધી પહોંચે છે, કે વચ્ચે ઇન્ટરમીડિયેટમાં ક્યાંક હવામાં જતું રહે છે, દેટ વી ડોન્ટ નો. પણ તમારો એસે કે તમારો આન્સર વાંચ્યા પછી નેગેટિવિટી ના લાગવી જોઈએ, બિકોઝ ગવર્મેન્ટ વોન્ટ સમવન ટુ વર્ક ફ્રોમ ધેમ.
વર્ક ફોર ધેમ. સોરી, હવે તમે અગેન્સ્ટ લખો તો એક્ઝામિનરને એવું થાય કે આ આવું કેમ લખે છે. એ ભાઈના એસે વાંચ્યું ને મને કે તમે ઇવેલ્યુએટ કરી આપો ને મને. જેટલા એસે વાંચ્યું ને દરેકમાં મને એવું લાગે કે કેટલું નેગેટિવ લખે છે. એ દરેક પેરેગ્રાફમાં કંઈક નેગેટિવ. ઓકે, ક્રિટિસાઇઝ કરવું જરૂરી છે, ક્રિટિસિઝમ બી જરૂર છે. આન્સરમાં તમને પૂછશે જ્યારે કે આને ક્રિટિકલી ઇવેલ્યુએટ કરો ત્યારે તમારે પોઝિટિવ્સ પણ લખવા પડે ને નેગેટિવ પણ લખવા પડે. પણ તમે એકદમ નેગેટિવ બેઝ પર જતા રહો તો દેટ કેન ઇમ્પેક્ટ યોર સ્કોરિંગ લેવલ. અને આપણે અલ્ટિમેટલી ગવર્મેન્ટ માટે કામ કરીએ છીએ તો વી હેવ ટુ બી અને આપણો અપ્રોચ પણ હોવો જોઈએ કે મોર પોઝિટિવિઝમ હોવું જોઈએ. કેમ કે ડે ટુ ડે બેઝિસ પર દેર વિલ બી મલ્ટિપલ થિંગ્સ વિલ બી ગોઈંગ થ્રુ while you are working for the government. ઘણી બધી વસ્તુ આવશે. there you have to seek for the optimism. તમને દેખાય છે તમારી સામે that something is going wrong. No, everything is going wrong. But still you have to be optimistic. No, this will give us some fruitful results. અને એ જ પાયો છે આપણા આન્સર્સનો કે આન્સર્સમાં યુ હેવ ટુ બી લાઈક વેરી મચ ઓપ્ટિમિસ્ટિક, રાઈટ? આ થઈ ગયા GS 1 2 3ની વાત. હવે પર્સનલી કોઈને કાંઈ ક્વેશ્ચન હોય ને તો મને પૂછો તો ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન રાખીએ રિગાર્ડિંગ GPSC. અને પ્લીઝ GPSCની બુકલેટ્સ એ બધું હું સજેસ્ટ કરું ને તમે ફોલો કરો એના કરતાં તમે બધા જે વાંચો છો કે માર્કેટમાં જે ચાલે છે એ સારું છે. એટલે હું કોઈનું કંઈક કહું પ્રમોટ થઈ જાય અથવા તો બની શકે તમને એટલું કામ ના લાગે તો રાધર અપાર્ટ ફ્રોમ ધી વોટ બુક્સ ટુ રીડ વી વિલ બી ફોકસિંગ અપોન કે તમને ક્યાં ક્યાં પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે. કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો ફીલ ફ્રી ટુ આસ્ક. બોયઝ, હાજી. એઝ યુ સેડ લાઈક પહેલાં તમે યુપીએસસી કરતા હતા પછી જીપીએસસીમાં કરતા રાઈટ. એના માટે પ્રોપર યુપીએસસી હતું પહેલાં? પ્રોપર યુપીએસસી હતું. 2018માં આઈ વોઝ નોટ એટ ઓલ અવેર કે જીપીએસસી નામની કાંઈ વસ્તુ હોય. અને મારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં દે વર મોસ્ટલી નોન ગુજરાતીઝ. વી વર પ્રિપેરિંગ ટુગેધર એન્ડ somebody suggested then don't go for this exam because you don't know anything about Gujarat geography or history. But I was like ઠીક છે હવે આપી દઈએ. એન્ડ દેન someone જેણે મને જીદ કરાવીને ફોર્મ ભરાવેલું that person said ટીક કરવાના હોય છે. તો I was that unaware. પણ એવું નથી કહેતી કે દરેકે આ પ્રેક્ટિસ ફોલો કરવી જોઈએ. યુપીએસસી ઇઝ બિગર સર્કલ, જીપીએસસી ઇઝ સમવેર સ્મોલર સર્કલ ઇન ટુ દેટ બિગર સર્કલ. તો તમે જ્યારે યુપીએસસીનું વાંચતા હશો તો જીપીએસસીનું આવી જ જાય છે. પણ યુ હેવ ટુ વર્ક હાર્ડ ફોર ધી ગુજરાતની હિસ્ટ્રી અને ગુજરાતની જોગ્રાફી એના પર થોડું વધુ ફોકસ કરવું પડે છે. કેમ કે બેઝિકલી સાથે રાખવું અત્યારે યુપીએસસીમાં યસ 100%. ઓલવેઝ હેવ બેકઅપ. હવે તો હું એવું કહું છું કે ઓલવેઝ હેવ બેકઅપ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે યુપીએસસી ઇઝ ડિફિકલ્ટ ઓર નથી થતી, પણ જે ફેક્ટ છે યુ હેવ ટુ હેવ બેકઅપ. શરૂઆતના જે અમારા સમય જે હું વાત કરું કે 17માં શરૂઆત થઈ, 18 19 એ બધી એક્ઝામ્સ લેવાઈને હવે થોડો ફેક્ચ્યુઅલ ડેટા થોડો વધુ પૂછે છે. એટલે યુ હેવ ટુ બી થોરર વિથ પ્રિલિમ્સનું પેપર પણ ઘણું ચેન્જ થયું છે. અમારા વખતે ઇટ વોઝ ઓલ અબાઉટ કે 1 2 3 સ્ટેટમેન્ટ્સ અને એ વખતે 2 કલાકનો જ ટાઈમ મળતો હતો. હવે 3 કલાક કરી દીધા છે. હવે આનું કટ ઓફ પણ ઊંચું જતું હોય છે. અમારા વખતે કટ ઓફ બી એકદમ કેમ કે 2 જ કલાક મળતા હતા. એટલે ઇટ વોઝ ડિફિકલ્ટ પણ સ્ટીલ મેનેજેબલ છે. ઓલ આઈ વિલ સે ઇઝ કે મારા ઇન્ટરવ્યૂમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ 46 માર્ક્સ હતા ફોર સમ રીઝન્સ. બીજી વારમાં 40 માર્ક્સ હતા. એટલે ઇન્ટરવ્યૂના માર્ક્સ પર ડિપેન્ડન્ટ રહીને આપણને એવું લાગે કે 100 માર્ક્સનું છે આઈ વિલ સ્કોર 70 એન્ડ આઈલ ગેટ થ્રુ ઇટ. ના, ડોન્ટ ડિપેન્ડ ઓન ઇન્ટરવ્યૂ કા માર્ક્સ બિકોઝ મેઇન્સના માર્ક્સ છે જે તમને 100% હેલ્પ કરશે. અને એવું કાંઈ નથી કે 1 મહિનો છે, 1.5 મહિનો છે, ટાઈમ ઓછો છે તો યુ કાન્ટ ડુ ધીસ ઓર એનીથિંગ. થઈ જ જતું હોય છે. ઇઝી જ એક્ઝામ છે. સરે કીધું એમ કે શું વાંચવાનું છે અને કેવી રીતે વાંચવાનું છે દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કન્ટેન્ટ તમે શું આપશો એ સારે આગળના સેશનમાં આપણને બતાવી દીધું કે કન્ટેન્ટ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને એ આપણે કેવી રીતે બેસ્ટ ડિલિવર કરવાનું. હવે ઘણી બધી વાર એવા ક્વેશ્ચન બી હશે કે તમને કાંઈ જ નહીં આવડતું હોય. જેમ મેં પહેલાં કીધું ત્યારે પેલો આપણો કે પ્રસ્તાવના અને કન્ક્લુઝન રેડી હશે એ તો આપણે પંચલાઇનવાળું લખશું જ કે એક્ઝામિનર હશે કે વાવ, એને થઈ જવું જોઈએ વાવ, બરાબર. એવા આન્સર્સ લખવાની કોશિશ આપણે ત્યારે કરી શકીએ જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ. સરે પૂછો આઈ સો નો બડી ઇઝ રિયલી રાઇટિંગ. આઈ ગેસ શરૂઆતના તમે પ્રિપરેશન મોડમાં છો પણ ડુ રાઇટ યાર. લખવું બહુ જ લખવાનું. અને પેન શરૂ થશે પછી અટકશે નહીં. પણ જો પેન શરૂ થવાની જે વાત છે ને ત્યાં આપણે અટકી જતા હોઈએ છીએ. એટલે કન્ટેન્ટ હોય ને વિથ કોન્ફિડન્સ યુ કેન ડુ વન્ડર્સ. ઓકે, બીજો કંઈ ક્વેશ્ચન કોઈને? સો આઈ ગેસ કન્ટેન્ટનું થઈ ગયું છે. તો આપણી પાસે મારી પાસે હવે હું તો વધુ સર ઓલરેડી બધું જ કવર કરી ચૂક્યા છે જે હું કંઈ નવું કહેવાની નથી ને મારે હું રિપીટ પણ કરવા નથી માંગતી. કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો લઈએ, અધરવાઇઝ વી કેન જસ્ટ આઈ વિલ જસ્ટ એન્ડ ધીસ.
તમને કાંઈ પણ ઇશ્યુ હોય જીપીએસસી રિલેટેડ આન્સર કોપીઝ ચેક કરાવી હોય કે કંઈ પણ ઇશ્યુ હોય જે અપાર્ટ ફ્રોમ અહીંયા ના કહી શકતા હોય પર્સનલી વન કરવું હોય તો આઈ એમ ઓલ અવેલેબલ. ઓકે સર, આઈ બી ડન. થેન્ક યુ. અમારી યુગવંદના ટીમના જે મેમ્બર છે સોહિની મેડમ, જે અત્યારે ડીવાયએસઓ તરીકે ફરજ બજાવે છે અને સેક્ટર 11 ખાતે જેટલા પણ આન્સર લખાય છે એના લગભગ 1 વર્ષથી વધારે ચેકિંગ કરે છે. અને એમના ચેકિંગના આધારે એ છે ને કે જે પણ વિદ્યાર્થીઓ પહેલી વખત જે ધારો કે આન્સર લખે છે એ કેવી ભૂલો કરે છે અને શું તમારે ભૂલો કેવી ન કરવી જોઈએ અથવા શરૂઆતથી તમારે કેવી રીતે, ધારો કે જે લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ જ આ જીપીએસસીની એક્ઝામ લખી રહ્યા છે એમને કેવી રીતે આન્સર લખવું જોઈએ એના વિશે 5 થી 10 મિનિટ સોહિની મેડમ થોડું ફોકસ કરશે. મેડમ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કેમ છો બધા? મજામાં? ટેન્શનમાં નથી આવી ગયા ને આટલું બધું રીડિંગ સ્ટડીની વાત સાંભળીને? ઓકે, તો હાઉઝ ધ જોશ અબાઉટ એક્ઝામ? ઓકે, પહેલાં રિલેક્સ થઈ જાઓ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બોર નહીં કરું તમને બધાને. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એવી વાત છે કે આપણે પ્રિપરેશનના ફેઝમાં સ્ટાર્ટ કર્યું છે. તમે કોઈને કોઈ પર્પઝથી અહીંયા બેઠા છો, રાઈટ? કે તમને જાણવું છે, તમારો એક વિલ પાવર છે, યુ વોન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ એન્ડ યુ આર હિયર ટુ નો સમથિંગ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એ વાત કરીશું કે આન્સર રાઇટિંગ અત્યારે વેધર સીસીઈની કોઈને મેન્સ હશે, પીએસઆઈની હશે કે તમે જીપીએસસીની લઈ લો, એસટીઆઈ આવે છે, કોઈ પણ એક્ઝામ હશે. હવે સરકારે એક પેટર્ન એડ કરી લીધી છે મેન્સ, કે મેન્સ વગર એ લોકો લેવા નથી માંગતા. કારણ કે હવે એ બધાને રિયલાઇઝ થવા લાગ્યું છે કે જે એમસીક્યુ પેટર્ન છે એ ટપકા ગોખીને બરાબર દિવસ રાત ગોખીને ટપકા પૂરીને, કેટલીક વાર તો એવું બનેલા છે, બહુ પહેલાંના એવા કેસે છે કે ટપકા તમે જે પૂરો છો અડસટ્ટે પૂરીને આવો ને તોય પાસ થઈ જાઓ. કારણ કે જ્યારે બલ્કમાં વેકેન્સી હોય 5000 8000 જગ્યા હોય અને ઓનલી ટપકા પૂરીને હોય 100 માર્ક્સ હોય, શું ખબર 50 તમારા ખરા પડી ગયા, 80 ખરા પડી ગયા બાય લક એમ. તો હવે એવું આવી ગયું છે પેટર્ન કે તમારે મેન્સ કમ્પલસરી થઈ ગઈ છે કે મેન્સ તમારે લખવી જ પડશે. હવે હું યુગવનના લાઇબ્રેરી સાથે 1 વર્ષથી જોડાયેલી છું ને 1 વર્ષ અરાઉન્ડથી હું પેપર્સ ચેક કરું છું ત્યાં, બરાબર? તો કલ્પેશ સરે વાત કરી એ રીતે હું તમને બધાને એ કહેવા માંગીશ કે જ્યારે તમે આન્સર રાઇટિંગ સ્ટાર્ટ કરો તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ વસ્તુ એ છે કે તમે અત્યાર સુધીમાં સપોઝ કોઈના 5 મહિના 6 મહિના થઈ જાય તમારા રીડિંગ સ્ટાર્ટ કર્યાના, દેન આફ્ટર તમે દરેક સિલેબસ દરેક ટોપિકથી થોડું અવેર હો છો. યુ નો સમથિંગ અબાઉટ એવરીથિંગ કે હા આ વિષય આ છે, આ વિષય લિટલ ચલો તમને બહુ ડીપમાં ખબર નથી, 1-2 વર્ષ પછી તમે માસ્ટર થઈ ગયા હોય, બરાબર? પણ સ્ટાર્ટિંગમાં તમને એટલું બધું નોલેજ ના હોય. પણ જ્યારે તમે 6-7 મહિનાનો જે ટાઈમ થઈ જાય એમાં તમે જે તમારું બેઝિક રીડિંગ કરી લો છો, ધેન આફ્ટર તમે આન્સર રાઇટિંગ કરો, બરાબર? તો આજે જ તૈયારી ચાલુ કરીને આજે જ આન્સર રાઇટિંગ એવું નહીં, 4-5 મહિના એવું આપો પોતાને કે એનસીઆરટી જીસીઆરટી કમ્પ્લીટ કરો, દરેક વિષયમાં થોડું જાણો અને પછી સ્ટાર્ટ કરો. સૌથી પહેલી ભૂલ એ કે તમે આજે જ આન્સર રાઇટિંગ સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ આજે ચાલુ કરી અને આજે તમે યુપીએસસીનો પ્રીવિયસ યરનો ક્વેશ્ચન લઈ લીધો, પછી તમને ના આવડ્યો અથવા તો તમે અડધું પેજ ફિલઅપ કર્યું તો તમે એવું ફીલ કરશો કે મને નથી આવડતું. ના, એવું ના કરો. જીપીએસસીના જૂના ક્વેશ્ચન્સ લો અથવા તો તમે જે વાંચ્યું છે ને એમાંથી કોઈ એક નાનકડો ક્વેશ્ચન જાતે બનાવો કે ચલો ફોર એક્ઝામ્પલ આમાંથી કેવો આવી શકે, તમે જાતે સર બનો કે હા આ રીતે કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. ધેન આફ્ટર તમે એને અટેમ્પ્ટ કરો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે તમે જે વાંચ્યું છે અને તમે જે લખ્યું છે એમાં કેટલી સિમિલારિટી છે, બરાબર? તમે પોવર્ટી વિશે આજે વાંચ્યું જીસીઆરટીમાંથી અને તમે આન્સર લખો છો યુપીએસસીનો તો એ મેચ નહીં થઈ શકે. એટલે પહેલી વસ્તુ કે તમારા નોલેજ પ્રમાણે પ્રેક્ટિસ સ્ટાર્ટ કરો. જેમ તમારું નોલેજ એનરીચ થતું જાય છે એવી રીતે તમારા ક્વેશ્ચન્સનું લેવલ અપ કરો, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. સેકન્ડ વસ્તુ જે હમણાં ડિસ્કસ થઈ ગઈ છે કે પ્રેઝન્ટેશન, બ્યુટિફિકેશન, જે તમે લખો છો અને બ્યુટીફુલ પ્રેઝન્ટ કરો, બરાબર? ગંધાતું ગોબરું વ્યક્તિ કોઈ ઊભું હોય, નાયા ધોયા વગર હોય, એ આપણને પણ જોવું નથી ગમતું. ચેક ચાકવાળું હોય, વ્યવસ્થિત કપડાં ના પહેર્યા હોય તો એ આપણને જોવું ના ગમે, બરાબર? તો સેમ એઝ ઇટ ઇઝ તમે કદી પેપર ચેકરની સામે નથી જવાના, એની સામે જશે તમારો લખેલો આન્સર. એ જેટલો બ્યુટીફુલ, જેટલો સુંદર હશે એટલા તમારા માર્ક્સ સારા આવશે. અક્ષર, ઘણા કહે છે મારા અક્ષર સારા નથી થતા, મારા અક્ષર તો આવા જ છે, પહેલેથી જ આવા અક્ષર છે. અક્ષર એ ઓલ અબાઉટ તમારું જે રાઇટિંગનો મરોડ કેવો છે એના ઉપર છે. અને મરોડ તમારો ક્યારે આવે છે? જ્યારે તમે આન્સરની લખવાની પ્રેક્ટિસ કરો છો. કેમ ના થાય? ડેલી લખો ને 2 પાના, ડેલી લખો. ન્યૂઝપેપરમાંથી જોઈને કન્ટેન્ટ ભેગું કરીને લખો. જુઓ 2 મહિનામાં અક્ષર આના અહીંયા થઈ જશે.
તમને પોતાને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાગશે. એક તો આ બહુ સિલી એક્સક્યુઝ હોય છે પેપર ચેક કર્યા પછી કે મારા અક્ષર સુધરતા જ નથી, એવું લોકો મને કહેતા હોય છે. આ ખોટી વસ્તુ છે. તમે પ્રેક્ટિસ કરશો, એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. બરોબર. તો ફર્સ્ટ કે એક આન્સર બ્યુટીફુલ. થર્ડ કે એનું જે પેલું પેટર્ન હોય છે ઇન્ટ્રો, બોડી એન્ડ કન્ક્લુઝન, એને ધ્યાનમાં રાખો. લેંગ્વેજ હોય તો એમાં પણ ઇન્ટ્રો, કન્ક્લુઝન હોય. વ્યાકરણ, શબ્દ, જે સેન્ટેન્સ ફોર્મેશન હોય છે ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ, વેધર, એ બધાનું ધ્યાન આપો. તો જેટલી તમારી ભાષા શુદ્ધ હશે એટલા તમારા આન્સર સારા હશે. ભાષા શુદ્ધિકરણ એ રીતના સેન્સમાં કહું છું કે તમે જે બોલચાલની ભાષા વાપરો છો કે ક્યાં ગયો તો, બરાબર, અને જે તમારે પેપરમાં લખવાનું છે તમે ક્યાં ગયા હતા, આપ ક્યાં ગયા હતા, આ શીખો. બરાબર. જે તમે બોલો છો ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ, જે તમારે લખવાનું છે ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ડિફરન્ટ. બરાબર. તો આ બેમાં ડિફરન્સ હોવો જોઈએ કે તે તમે બોલો છો. અને હું તો કહું છું તમે બોલવામાં પણ શુદ્ધિકરણ લાવો. બોલવામાં પણ જેટલી પ્રેક્ટિસ સારા શબ્દોની, શુદ્ધ ગુજરાતીની કરશો એટલું શુદ્ધ ગુજરાતી તમે લખી શકશો. જેટલું તમારું પ્રોનાઉન્સિએશન ક્લિયર હશે એટલી તમારી સંધિ, જોડણી બધું ક્લિયર થતું જશે. ભલે એવું કહે છે કે જીએસના લેંગ્વેજમાં જોડણી મેટર નથી કરતી. સાચી વાત છે, મેટર તો ના જ કરતી હોય. બટ જો તમે સાચી લખી હશે અને કોઈ કે ખોટી લખી હશે તો ઇમ્પ્રેશન કોની સારી પડશે? જેને સાચી લખી છે એની જ પડશે. ઓકે. તો એક આ કોન્સેપ્ટ છે આન્સર રાઇટિંગ. એટલે પ્લીઝ જે પણ આન્સર રાઇટિંગ કરે ને એક ફ્રૂટફુલ પ્રેક્ટિસ કરો અને ચેકિંગ કરો, સેલ્ફ ઇવેલ્યુશન કરો, જે તમને પસંદ આવે એ રીતે કરો, પણ ડેઈલી કંઈક ને કંઈક લખવાનું ચાલુ રાખો. સપોઝ કોઈ પીએસઆઈની કે સીસીની તૈયારી કરે છે તો જેનું કોઈ પ્લાન હોય કે આગળ મારે રાઇટિંગવાળી કોઈ મેન્સ આપવાની છે તો એ અત્યારથી પ્રેક્ટિસ કરો કે ડેઈલી કંઈક ને કંઈક લખો. પછી સડનલી કોઈ એક્ઝામ આવી જશે ને તમને એટલી હેબિટ જ નહીં હોય કે હું શું લખું, તમે કંઈ લખ્યું નહીં હોય, અચાનક લખવાનું આવી જશે, પછી બધું પેનિક કરવા લાગશો કે નથી લખાતું, આમ નથી થતું. અત્યારે કેટલી વાર લાઇબ્રેરીમાં મારી પાસે અડધો કલાક લોકો ડિસ્કસ કરે છે, આ નથી થતું, તે નથી થતું, લખાતું નથી, પેન નથી ઉપડતી, આમ નહીં. આ બધા એક્સક્યુઝ છે. એકચ્યુઅલી સેકન્ડ વસ્તુ તો મેઇન એ પણ છે ને કે તમારો વિલ પાવર, બરાબર, તમારું ડેડિકેશન. તમે લાઇબ્રેરીમાં આવ્યા છો તો તમારે કેટલો ટાઈમ રીડિંગ કરવાનું છે, તમે કેટલા ટાઈમ સીટ ઉપર બેસો છો. લાઇબ્રેરીમાં છે ને તમે એક ડાયરી અથવા તો ફોનમાં વોટેવર એક નોટ ફોલો કરો કે તમે લાઇબ્રેરી આવ્યા કેટલા વાગે, ડેલી લખો, તમે જાઓ છો કેટલા વાગે લખો. બટ એની વચ્ચે કે તમે વાંચ્યું કેટલા કલાક, એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કે લાઇબ્રેરીમાં આવ્યા પછી તમે 2 કલાક બહાર ગયા હતા, કલાક ચા પર હતા, 2 કલાક ફ્રેન્ડ સાથે ડિસ્કસ કર્યું, તો આ બધું પણ કરો. અને જે કન્ક્લુઝન, આજે રાત્રે સૂતા પહેલાં જુઓ કે આજે ટોટલ વાંચવાના આર્ટ્સ કેટલા થયા છે. 6 કલાક થયા, કાલે 6.5 થશે. આ જે તમે પ્રેક્ટિસ કરશો ને એનાથી તમારા વાંચવાના આર્ટ્સ વધતા જશે. 7 કલાક 8 કલાક વધતું જશે. બરાબર. અને રીડિંગમાં ઘણા એવું કહે છે કે 12 કલાક ના વંચાય, 10 કલાક ના વંચાય, 6 કલાક ના વંચાય. એવું નથી. જ્યાં સુધી તમે વાંચી શકો છો ત્યાં સુધી વંચાય. જો તમે 12 કલાકની કેપેસિટી ધરાવો છો તો તમે બેસો અને વાંચો. આ બધા મિથમાં ના પડશો કે આમ ના થાય, આ રીતે ના વંચાય, પેલું ના કરાય. એવું નથી. તમે કોઈ પણ તૈયારી XYZ કરો છો, કોઈ પણ પ્રિપરેશન કરી રહ્યા છો, તમારું જ્યાં સુધી બેસી શકાય છે, તમારી તાકાત છે ત્યાં સુધી બેસો. અને જે દિવસ તમારામાં એ લેવલનું ડેડિકેશન આવી જશે ને એ દિવસે ડેફિનેટલી તમે જેટલું બેસવું હશે ને એટલું બેસીને વાંચી શકશો. બિકોઝ આ જે પેન છે, બેસવાનો થાક છે, એ બધું લાઈફમાં એક જ વાર કરવાનું છે. એકવાર સક્સેસ મળી ગઈ, જોબ મળી ગઈ પછી કોઈ તમને એવું નથી કહેવાનું કે જ્યાં લાઇબ્રેરીમાં 10 કલાક બેસીને આવે. બરોબર. જે છે એ કોના માટે, આપણું ગોલ અચીવ કરવા માટે છે. તો આના માટે તમે હંમેશા ટ્રાય કરો, આ બધી વસ્તુ માઇન્ડમાં રાખો. અને હું જનરલી દરેક સેમિનારમાં આ વસ્તુ ડિસ્કસ કરતી હોઉં છું કે એક મેડિટેશન વસ્તુ એવી છે, કદાચ કોઈ નહીં કરતું હોય, કોઈ કરતું હશે. કોઈ છે એવું કરે છે? તમે કરો છો, રાઈટ. કોઈ બીજું? જનરલી આપણે આટલા બધા બેઠા છે ને એમાંથી એક જ ભાઈ એવું કહે છે કે હું કરું છું, બાકી કોઈ કરતા નથી. બટ તમે વન્સ એ પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરો, મેડિટેશન 5 મિનિટથી સ્ટાર્ટ કરો, ડેલી 5 મિનિટ. તમે 5 મિનિટ પણ નહીં બેસી શકો, તમને ખ્યાલ હશે. સ્ટાર્ટ તમે જ્યારે કરો છો ને મેડિટેશન, તમે 5 મિનિટ પણ નહીં બેસી શકો. તમે બીજી મિનિટમાં તો તમે આંખો ખોલી દેશો અને આમ જોઈ લેશો કોણ છે આજુબાજુમાં, શું તમે રહી જ નહીં શકો. બટ મેડિટેશન પ્રેક્ટિસ એવી છે ને કે જે તમારું કોન્સન્ટ્રેશન વધારશે, લાઇબ્રેરીમાં તમારા બેસવાના આર્ટ્સ વધારશે. અને જે તમારે ડિસ્ટ્રેક્ટ છે કે આને મળી આવું, આને જોઈ લઉં, આ ચા પી આવું, આ ખાઈ આવું, એ બધા ઓછા થતા જશે. અને જે તમારો ગોલ છે એક રીડિંગનો, ત્યાં તમે ફોકસ તમારું વધારી શકશો. તો આ મસ્ટ પ્રેક્ટિસ છે. મેડિટેશન કરો. ઓકે. બાકી ઓલ ધ બેસ્ટ ટુ એવરીવન. કોઈને પણ કંઈ રીડિંગ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય, આન્સર રાઇટિંગનો પૂછવો હોય તો પૂછી શકો છો. એનીવન. ઓર એલ્સ વી કમ્પ્લીટ હિયર. ઓકે. થેન્ક યુ. ઓકે, તો આપ સૌ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ સેશનને આપણે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ.
ફરી મળીશું.